Well, thank you all for inviting me to this session. I'll be starting this session with some invocation prayers. We invocate the presence of God and His representatives so that we help us to understand this knowledge better. These mantras are just very powerful energy emitters. They attract energy and then they emit energy so that you can have that type of atmosphere where you can understand. You may not be able to understand them initially. What I'm going to speak is going to be in Sanskrit, so it's going to be a problem, but don't worry about the problem. My language of speaking will be English, very easily understood in India. I've studied in convent schools, but I'm very much against convent schools because I think the person who studies in the convent schools does not know English or Hindi. Where a person who studies in the Hindi schools basically knows Hindi very well. Because you cannot understand, you can't basically be a person very fluent in a language till you don't read, write and speak that language every moment of your life. I'll give you an example. When I was studying in the convent, we used to have a lot of problems in speaking English. So we had a principal with the name of Father Kulam. He told us, the biggest mistake you people commit is this: you think in Hindi and speak in English. Till you think in Hindi and speak in English, you'll have problems. You have to think in English and speak in English. That's very important. और हम लोग क्या करते हैं? सोचते हिंदी में, बोलते English. You construct these sentences in Hindi and then we translate them into English. So these mantras which I am going to chant, आपको समझ में भी नहीं आया तो चिंता मत करिएगा. इनको बेसिकली कहा गया है अग्नि स्वरूप. मंत्रों को क्या कहते हैं? अग्नि स्वरूप. Why do you call it अग्नि स्वरूप? Like fire. इसका कारण यह है कि फायर को बच्चा नहीं जानता कि वो जलाती है, राइट? फिर भी हाथ डालेगा तो वो जलाएगी. तो इसीलिए आपको अगर समझ में भी नहीं आए तो भी अपना काम करेंगे. जैसे कि आप मेडिसिन खाते हैं तो अंदर कैसे काम करती है आपको मालूम नहीं है. यू डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट स्टिल इट वर्क्स. सो यू गॉट अ प्रैक्टिकल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू. The session now which I am going to start and hold is going to have a last 15-20 minutes of question answer session. So पहले बता दूं, अगर मन में प्रश्न होंगे बीच में नहीं लूँगा, because बीच में क्या होता है that थोड़ा सा flow गड़बड़ हो जाती है. So I've got no problems, but it will be problems for you. तो आखिरी के अंदर we take question answers also, and which we call as doubt busting sessions. Are very important for any knowledge to be taken, because if you take knowledge and you still have doubts, you will not apply it in your life. तो बस ध्यान पूर्वक सुनिएगा. इन मंत्रों का बेस्ट तरीका क्या होता है कि you have to just listen to them, not hear them, but to listen. ध्यान पूर्वक. listen का मतलब ध्यान पूर्वक सुनना. एक होता है सुनना और एक होता है ध्यान पूर्वक सुनना. yes. तो आपको वैसे भी दो कान दिए गए. कितने कान दिए गए? मुंह कितने दिए गए? तो ज्यादा क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट का पहला असूल है, अक्लमंद व्यक्ति ज्यादा सुनता है, बोलता कम है. जब ज्यादा बोलते हो तो मूर्ख बनते हो. ज्यादा बोलने में मूर्खता लगती है, कम बोलने में मूर्खता पता ही नहीं लगती. जो आदमी एकदम चुप रहता है पता ही लगता है कि मूर्ख है कि अक्लमंद है ना. You don't come to know. If a person does not speak, you don't know. My Guru Maharaj Prabhupada used to say कि किसी टीचर को कैसे पहचाना जाए. अब वो टीचर है, but he used to give a very strong example because he was a very strong person, and he used to give this example. This example which I am quoting, he basically gave at MIT. He said you can't recognize a dog or a king if you are at a distance. He said a dog is sitting with a crown on the throne.
अब पता ही लग रहा कि ये कुछ ज्ञानी है कि अज्ञानी है, एक बॉल फेंक तो पता लग जाएगा ज्ञानी है कि अज्ञानी है। सो एकदम भौंकने लगेगा, भौंकने से पता लग जाएगा कि क्या है। तो इसीलिए ज्यादा सुनने की प्रैक्टिस करो, किसी करने की। और ये मैनेजमेंट का, एंटरप्रेन्योरशिप का, ये पैरासूले में बिजनेस करता था, तो मैं आपको बता दूंगा कि ज्यादा सुनने वाले, ज्यादातर आप बिजनेसमैन, जो टॉप बिजनेसमैन है, बोलते कम है, सुनते ज्यादा है, और एक ही सेंटेंस में आपका सत्यानाश मार देते हैं। So I know a person, he was actually the, if you have heard Seema Limited. The Seema Limited was the owners of Seema Bulbs and Tubes. They are of the same family of Motilals. They used to tell me, if we businessmen ज्यादा सुनते हैं, जिससे कि क्या होता है, ज्यादा बोलने, जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है उसकी गलतियां पकड़ लेते हैं, और फिर उसके ऊपर हम वर्क करते हैं, और फिर उसका क्या करते हैं, फिर उसको हम अपने हाथ में लेते हैं। तो जब भी सुनिए ज्यादा, जब भगवान, मजे की बात है, भगवद गीता के अंदर भी टाइम एंड अगेन कृष्णा हैज यूज्ड द वर्ड श्रुणु। व्हाट इज द वर्ड टू यूज द वर्ड? श्रुणु, सुनो। एंड आई विल रिक्वेस्ट द टीचर्स आल्सो टू कीप सेइंग दिस बार बार, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हमारी आदत होती है कि हम भाग जाते हैं। थोड़ी देर कंसंट्रेशन जमाई, 10 मिनट, टीचर ने कुछ कहा, उसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? उसके बाद क्या होता है, यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट व्हाट ही हैज सेड, बट एक्चुअली यू शुड बी लिसनिंग, थिंकिंग लेटर। उसको कहते हैं सुनना और मनन करना। क्या कहते हैं? मनन उस टाइम मत करिएगा। तो ज्यादातर because there can be no better teacher than Lord Shri Krishna, and no better student than Arjuna. But then also he is repeating the word Shrunu, sun. That means he knew कि a good student like Arjuna also would start thinking of something else, what I have told him. So this is one thing. तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एंड कोई मैं पंडित नहीं हूँ, मैं बहुत बदमाश ढूंढ रहा हूँ। मेरे टीचर्स अभी मुझे याद करते हैं, मैंने यूनियनबाजी करी है, मैंने दिल्ली में स्ट्राइक करी है, बोट क्लब पे रैली निकाली है, तो लोगों की पिटाई भी लगाई है, परंतु किसी कारण थी, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को, कई लड़के आके हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स को छिड़ा करते थे, हमने पुलिस में रिपोर्ट कराया, उनके हार गए, तो मैंने कहा फिर अब सफाई कर देते। तो और कोई तरीका नहीं बचा है, फायर कर करके हम थक गए। सो why I'm telling you this, that when I can take this knowledge, so you can also take this knowledge. I was born as a introduction बताया कि I'm just repeating it. My father was in the army, so I was not born as a पंडित जी कि कर्म कांड कर रहे हैं, मतलब I was very much like you. I used to play a lot of cricket. Almost I played state level. My father was against it. Because at that, during my time, 69-70, cricketers used to become clerks. Ajit Wadekar was actually a clerk in the bank. So my father used to get very annoyed. He used to say, "Officer का बच्चा होके तू clerk बनना चाहता है?" And that's actually which instigated me to read Bhagavad Gita, which I'll talk to you about. So I did my hotel management. You in Jaipur are very lucky. I still find you 40 years behind than Delhi. What I was doing during my student life, still people don't do it here. So that's very good. The amount of jam sessions we used to have, you're still far off from there. That is very nice. It's very good. Actually, a student should be studying if he wants to make anything out of his life. If you don't want to make anything out of your life, then you can do anything what you want. Least bothered. And the teachers are also not bothered about such students. So, and then why I picked it up, why I picked up to this knowledge, why I got interested in this, and why did I change my profession? I have not given up anything. First thing, I'll start with this only before I start chanting the mantras, because people start thinking when you take up to this life, you give up everything. Sorry. When you become a rich man, you give up also. What do you give up? Poverty.
When you become knowledgeable, you give up ignorance. Without giving up, you can't get anything. But that giving up is very good, is it not? You come to college for what? To give up ignorance and to be enlightened by knowledge. That's the most important thing. So I have also not given everything, I have just become a teacher. What have I become? A teacher. I'll talk to you. I have become teacher of Bhagavad Gita, which is actually a book of spiritual knowledge. And what is spirituality? I'll explain you in 2 minutes. You'll understand that. That's not a problem. So now, before I go ahead, so please listen to these mantras carefully. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Vadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yukpadakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadhvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dainu Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishamano Sude Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarurvescha Kripa Sindhu Bhayev Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Let us first of all learning it through Bhagavad Gita. What is Bhagavad Gita? Bhagavad Gita क्या है? हाँ जी. Word of Krishna. Word of Krishna. Okay. किस चीज के बारे में? Convince Arjun to fight against his own family. Okay. Anything else? अर्जुन को उपदेश देने के लिए. अर्जुन को उपदेश देने के लिए. ठीक है, उन्होंने बताया कि मेरे जितना भी लेक्चर होगा ये इंटरैक्टिव होगा, ध्यान रखिएगा. It will be interactive. We'll be talking to one another. That's the way I present the philosophy. धर्म शांति. धर्म शांति के. Anyone wants to add anything else? To give the knowledge to all the persons through the lecture, through जो मतलब सारस को संदेश देना चाहते हैं, अर्जुन को संदेश देने के द्वारा. ठीक है. उनको अर्जुन को निमित्त मात्र बना रहे हैं समूह को उपदेश देने के लिए, सारे समाज को उपदेश देने के लिए. Very nice. Anyone wants to add anything else? Sir, it's a Yes. solution book to your problems. It is a solution book to your problems. Very good. Way to live the life. Way to live the Way life. to live. Very nice. Yes. Song of the Lord. Yeah, that's the actually the meaning of the word Bhagavad Gita. Song of the Lord. Bhagavat means in it is Lord. Bhagavan. It comes from the word Bhagavan. पर मेरे पास अभी समय नहीं है कि मैं आपके साथ सब टेक्निकल नामों का खुलासा कर सकूं, बता सकूं. पर तो इतना बताता हूं, भगवान शब्द भग और वान से आया, दो शब्दों से. विद्यावान का मतलब है जो विद्या को वान करता है, उसको विद्यावान कहते हैं. तो इसी तरीके से धन को जो वान करता है उसको क्या कहते हैं? धनवान. इसी तरीके से जो भग को वान करता है उसको भगवान कहते हैं. भग, अब भग क्या है? अब भग फिर संस्कृत शब्द. धन तो आप सब जानते हैं.
परंतु आप कहेंगे आदिवासी उधर जाके बोलिए धन बोले व्हाट इज दैट, आई नो थन, है ना, मैं काउस के थन को जानता हूं, दूध निकालता हूं, दूध पीता हूं, सेहत बनाता हूं, राइट, बट धन आई डू नॉट नो बिकॉज बार्टर सिस्टम चलता है हमारे यहाँ। क्या चलता है? बार्टर सिस्टम, बेस्ट सिस्टम। बार्टर सिस्टम इज, that's why when America collapses with the credit problems, many countries don't collapse with states. तो धन वहां, तो भग का मतलब क्या है? जल्दी बताता हूं फटाफट आपको, क्योंकि ये लेक्चर का टॉपिक नहीं है, तो फिर बताना पड़ेगा कि भगवत गीता की बात कर रहे हैं, तो भगवत की बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो भगवत का मतलब आया है शब्द से भगवान से, और भगवान शब्द बना है भग और वान से। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? Opulences, absolutely right, opulences। opulences क्या होती हैं? अब उर्दू में मत बोलना कोई, ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। ऐश्वर्य वो गुण होता है जो कि दूसरों को आकर्षित करता है, जो दूसरों को, जो समस्त भगों को मतलब समस्त ऐश्वर्यों को वान करता है, उसको भगवान कहते हैं। The scriptures of spiritual knowledge tell us that bhag are main six, there are six bhags, six aishwaryas, six opulences. First, opulence. Who can claim to be Bhagavan? The real Bhagavan, not subsidiary Bhagavans. Yeah, they are subsidiary Bhagavans also. The representative Bhagavans, they are not Bhagavan. It is like, the basic fact is this, that there is the commissioner and there is the district magistrate. In reality, the DM is working for the commissioner. There is the head of the department and there is the principal, and there is the director, and there is the owner. So they are in a line. The work of the head of the department is to do what the principal says, the work of the principal is what the director says, and the work of the director is what the owner says, because the visionary was the owner who set up this thing, right? Now the others can have their own vision, but that vision should be coinciding with the vision, original vision for which the particular organization or anything was set up. That's very important. तो इसी तरीके से भगवान में भी, और बता दूंगा आपको मैं, तो ये यहाँ बात कर रहे हैं हम ओरिजिनल भगवान की, जिनसे कि बाकी सब रिप्रेजेंटेटिव्स अपना पावर लेते हैं। तो दैट उसमें कहा गया है, द पर्सन हु ओन्स all riches, that means everything belongs to that particular person, nothing is of anyone. You may be looking after something, but that not make you the owner of that particular thing. जो सबसे धनवान, जिनके पास सब कुछ, सारा धन उन्हीं का है, ये नहीं सबसे रिच है, नहीं। सबसे रिच का मतलब क्या होगा? दूसरे भी रिच हैं, परंतु इसका मतलब ये है कि he is the only person who is the owner of all riches. And very simple to explain that if आप कहीं आप किसी के घर जाते हैं, अपनी घड़ी उतारते हैं और रखते हैं, और सुबह क्या होगा? आप जब जाते हैं छोड़ के, आप आगे बोलते हैं ठीक है, I revert with you, thank you very much. You pick up your watch and you take the watch because it belongs to you. But when you die, can you take away anything? That means it didn't belong to you. It didn't belong to you. If it belonged to you, you could have taken it. This body also you have to leave behind. This body also you have to leave behind. Now that means this body also didn't belong to you. So this understanding basically makes a person honest. I'll tell you, all these opulences, if you understand, will give you very good qualities in life to lead life. I'll be coming to your entrepreneurship and leadership and management also. Please try understanding what I'm talking about. I'll be linking it because first it is theory, then it is practical, right? आप सीधे क्यों नहीं चले गए एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए, लीडर बनने के लिए, मैनेजमेंट उसमें क्यों नहीं चले गए? बिकॉज यू नीड थ्योरेटिकल नॉलेज फर्स्ट. बट मेरी गलती थी जब मैं आई वाज डूइंग माय होटल मैनेजमेंट, उस टाइम आई यूज्ड टू रीड मोर ऑफ ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज बिकॉज आई थॉट दिस ऑल इज यूजलेस. I should know the practical formula क्या है लोगों का सक्सेस होने. How do they basically hit the button and reach there? So that was my way of doing. So I'll tell you one thing: read your books. जैसे हमारे समय के अंदर भी पीटर डकर पढ़ते थे, तो अपने पढ़िए, परंतु साथ में ये भी देखिए कि आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं. That's why I give you a formula for how to take knowledge in life.
इसको फॉर्मूला बड़ा अच्छा नाम है, इसको कहते हैं दुआ। क्या कहते हैं? DUA. This is how we study spiritual life. D means discovery, U means understanding, and A means application. Dua. You pick up anything, that's how we study spiritual knowledge. That's how we have been taught in our the Guru Parampara system, that how you can understand spiritual knowledge. Why have you read a chapter, what have you discovered in it? How do you understand it? And how do you apply it? So dua, DUA, याद रहेगा वर्ड। सब क्या चाहते हैं? दुआ। तो दुआ आपके हाथ में है। So he is the person who owns everything. This earth, these planetary systems, everything is owned by him. Number 2. He is the only person who's famous. Anyone who gets connected with him also becomes famous. You'll say, how is that? हकीकत के अंदर 1500 साल, 2000 साल, 4000 साल, 5000 साल पहले लोग थे, उनके नाम भी हिस्ट्री से क्या हो गए? वाइप आउट हो गए। परंतु जो इस व्यक्ति भगवान से जुड़े, वो चाहे वो अपोज करके जुड़े, उनके नाम रह गए हिस्ट्री के अंदर, एंड दे आर देयर फॉर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। जस्ट एन एग्जांपल, लाइक रावण, व्हाट डिड ही डू? He basically took opposition of Ram. Established name is there, Hanumanji, still name is there. So actually the real fame only comes when you get connected with them. Rest fames will come and go. आएंगे और जाएंगे. You want to become famous? Get connected to him. Number 3. He is the only person with knowledge. I'll give you some slides. See all these which talk of Vedas. Please try to understand Veda. ज़्यादा कुछ चक्कर नहीं पड़ना. Ved comes from the word with. With means to know. Knowledge comes from the word know. When you want to know, then you take knowledge. तो with every संस्कृत शब्द has जो शब्द होता है, word होता है, उसका एक बीज शब्द होता है. क्या होता है? बीज शब्द। बीज का मतलब क्या है? कि बीज लगाया, पेड़ हुआ, उसमें अनेकों फल निकले। परंतु सबके सब एक आम के पेड़ के ऊपर सारे के सारे फल किसके होते हैं? आम के होते हैं। तो दैट मीन्स दैट बीज शब्द अनेकों शब्द को पैदा करता है, जिनके की एक्चुअली मीनिंग मिलते जुलते होते हैं। So this comes from the word with. With means to know, and Veda means, translated into English means knowledge, and translated into Hindi means Gyan. That is the word, meaning of the word Veda. It has not got anything to do with Hindu or any faith. It's got nothing to do with any faith. I'm not talking of facts. I'm saying faith. Faith can be changed. Faith can be changed. इसका नाम सुना है? क्या कह रहे हैं? I go into the Upanishads to ask questions. कौन कह रहा है? नील बोर। और हम लोग क्या कहते हैं? कौन उपनिषद पढ़ेगा? पागल है क्या? वो है कि हम हैं? Upanishads are a part of the Vedas. They are the books of knowledge. And भगवद गीता का एक और नाम है गीतोपनिषद। क्या नाम है? गीतोपनिषद. It is also considered one of the Upanishads because it's got Upanishadic knowledge. I just wanted to present this before you. I've got a lot of quotes, hundreds of quotes from different top Nobel Prize winners who say that, मतलब इस लेवल तक लोगों ने बोल दिया है कि आप शॉक हो जाओगे, आप मेरे पास आ सकते हैं हमारे सेंटर पे. I can show you those. जहाँ के लोगों ने ये तक कह दिया है कि all knowledge actually has come from India. ये हम इंडियंस को ही अपने नॉलेज के ऊपर गर्व नहीं है कि हम हैं. आज आपकी जानकारी के लिए टॉप एमएनसीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग टॉप कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड आर इंट्रोड्यूसिंग द स्टडी मैनेजमेंट कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड आर इंट्रोड्यूसिंग. आप
our famous college है, क्या नाम है उसका, the Jain Management College of Bombay. Bhagavad Gita is an integral part of it. As MNCs basically are asking people, when I went to the West, I was shocked that university professors wanted to know the knowledge of this book. We want to understand this book. This book actually is so important. So who's given this book? Bhagavan. So he is the only person who is knowledgeable. Why? A reason behind knowledge is this. Actually, the real what is real? Why do you basically go after science so much? Why? Because it tells you the cause of all causes. In reality, science also is looking out for the cause of all causes. सारे कारणों के कारण को ढूंढ रहा है. क्योंकि जब कारणों का कारण पता लग जाएगा तो everything will fall into place. जब तक वो कारणों का कारण नहीं मिलता तक everything will be distorted, it cannot fall into place. You cannot manage it. मैं भी आऊंगा हॉस्पिटल मत करिए 5 मिनट के. डॉक्टर जी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी IIT रुड़की के अंदर. They were a management section. So I was talking to the dean there, director. तो मैंने उन्हें कहा how much time do you need? मैंने how much time can you give me? He said I can give you any amount of hours you want. When do you start? When do you want to start? At 12 o'clock. तो मैंने कहा गड़बड़ आप करोगे, रोकोगे आप, मैं नहीं रोकूंगा और ना आपके स्टूडेंट्स रुकेंगे. शाम के 5 बजे तक चलता है सेशन. तो क्या कहते हैं 5 बजे, I did not know that this will happen like this. So I said, I told you, starting will be yours, ending will be what your students want, not I also what I want. They didn't get up for a glass of water also. तो 1.5 घंटे बहुत कम होते हैं, तो क्या करूँ 1.5 घंटे में जितना होगा उतना मैं आपको प्रेजेंटेशन कर सकूँगा उतना कर. So try to understand one thing that the person who has all the knowledge क्यों बोला गया है. अभी आपको मैं भगवान बोल रहा हूँ, आप उसको ABCD बोलिए, गॉड बोलिए, कुछ नहीं. अभी मैं उस चक्कर में नहीं जा रहा, परंतु I am talking of this. That means he is the source of all sources. That means when you are, just imagine that there is only one person, nothing, no creation, no universes, nothing, no solar systems, nothing is there. He is the only person there. So when he creates something, who will have knowledge about the creation? He. So that means all knowledge will percolate from him. That means he is the only person who is all knowledgeable. Right or wrong? In the material world also, in this world also, you will see people have got doctorates, have won Nobel Prize winners. They are Nobel Prize winners, but they are not masters of all subjects. Right or wrong? So one thing in management, remember, you can't become master of all subjects. Remember this. That is why you got divisions, you got finance, you got marketing, you got sales, why do you have different, why do you have basically industrial management, why do you have different sections? Because no one today can master all the fields. You should have a basic idea, परंतु क्रिकेट का ऑलराउंडर नहीं बन सकते आप, ये ध्यान रखिएगा. तो ये चीज भी आपको हेल्प करेगी. Number 4, he is the only person who is beautiful. He is the only person who is beautiful because हमारी ब्यूटी तो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कब होता है व्यक्ति बताइए? जब वो छोटे होते हैं. बच्चे सबके ब्यूटीफुल होते हैं, जानवरों के भी लगता है ना. And as we keep growing up, और जब बुढ़ापे में आए थे तो फिर कॉस्मेटिक्स है ना, जैसी एज बढ़ने लगती है तो क्या होता है, किसी तरीके से सुंदर लगूं, हूं नहीं लगूं. But he is the person who is basically eternally useful. All beauty comes from him. That is why it is stated that a person जो कहते हैं लोग मैंने दर्शन कर लिए भगवान के, एक बार दर्शन कर लोगे तो कुछ और देखने का दिल ही नहीं करेगा. कई बार होता है ऐसा कि आपने कहीं, मेरे को अभी तक याद है, मुझे भी याद है कि मैं म्यूनिक में था, तो म्यूनिक में सरदार जी के यहाँ मैंने उसका रेस्टोरेंट था, तो मैंने गुलाब जामुन खाया गया.
तो जी ऐसे गुलाब जामुन मैंने इंडिया क्या वर्ल्ड में कहीं नहीं खाया। मैंने कहा सरदार जी बताओ इसका चक्कर क्या है। वैसे होटल वाला आदमी था तो खाने का तो शौक था। तो मैंने कहा ये कैसे बनाया। तो देखो जी पापे 80 एक ही काम करते हैं। क्या बोलते सुबह बना दें रात को फेंक देते हैं। क्या करते हैं सुबह बनाते हैं और रात को फ्रेश। उसको खाने के बाद अब मुझे कोई गुलाब जामुन अच्छा लगता ही because that was the ultimate taste. So in the same way there is ultimate beauty. Once you basically get attracted to that supreme, the person who is the cause of all causes, what happens that you don't like to see anything else. It is actually your कहते हैं ना beauty personified. क्या कहते हैं? Fifth, he is the only person who's got strength. समस्त बलशाली। क्वेश्चन करता हूं आपसे, अर्थ को हवा में किसने टिका रखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ने नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने टिका रखा है। उल्टी बात मत करो। उसका मतलब कोई है जिसने टिका रखा है। I'm not going to names. I'm not going to names. There is some energy due to which this is staying in its orbit, right? An energy cannot exist without an energetic. Simple. आज आप कहते हो बड़ा बुद्धि, भाई क्या बुद्धि है जिसने बनाया है। यही वो व्यक्ति है जिसने बनाया। बोले व्यक्ति को नहीं मानता, मैं तो बुद्धि को मानता हूं। अरे भाई साहब, बुद्धि बुद्धिमान के बगैर हो ही नहीं सकती। जब भी बुद्धि को अवार्ड नहीं मिलता, बुद्धिमान को अवार्ड मिलता है, क्योंकि बुद्धि बुद्धिमान में है। And when he wants to use it, he uses it. When he doesn't want to use it, he doesn't use that. So that means the energy is under the energetic. That shows that all these planets, which are basically moving in the orbit, have got to have energy which is, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया सीधा, परंतु ग्रेविटेशनल फोर्स तो बेसिकली हमें रखे हुए हैं। बाकी जो एनर्जी वर्क कर रही है इसके कारण कि ये प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में चल रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण एनर्जी है, पहली चीज। परंतु एनर्जी किसकी है? जैसे आज इस कुर्सी को उठाया किसने, तो उठाया किसने? व्यक्ति ने या एनर्जी ने? एनर्जी ने। परंतु एनर्जी किसके पास है? व्यक्ति के पास में। दैट्स व्हाई ही नोज बल, ही इज नोन एज बलशाली, बलवान। क्या माना जाता है? बलवान। ये अब आपको ये समझना होगा, ऑल द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम हिम। व्हाटएवर एनर्जी यू हैव is coming from that particular person who's known as Bhagavan. Sixth, and he's got the quality of detached. What is got the quality of? ये समझना थोड़ा मुश्किल है। वैराग की quality है, not easy to understand. He's detached. Why are you attached to something? कौन बताएगा? हाँ, इमोशंस मतलब why? मैं इमोशन तो आप बोल रहे हो कि हाउ, मैं बात कर रहा हूँ कि why are you attached to something? Absolute right. Dependency. Dependency means that you have got something less in you, and you want that particular thing to fulfill that vacuum. Right or wrong? But that source of all sources, cause of all causes, is complete in himself. Is complete in himself. So he does not require anyone else. That is why he is totally detached. And a person who is totally detached can only be a good leader. Why? Why can only a detached person be a good leader? Because a person who is attached, mostly people are attached to positions in life, right or wrong? And when you are attached to positions, you will start exploiting others to get to that position. And I am very sorry to say, a leader
is a namesake leader if he is in the mood of exploitation. That is why he never gets 100% from the people who are under him. Is it right or wrong? So the more detached you are, the better leader you are, because leadership is a quality which is actually not within you, it is seen by others. Do they want to accept you as a leader or not? Is it right or wrong? I can just tell you, but the basic fact is this, that others would accept you as a leader, right? Or am I right or wrong? कि जी आप क्या हो? तो मैं लीडर हूं, कितने फॉलोअर हैं? तो लीडर किधर का? किधर का लीडर हो? ध्यान रखिएगा, जो लोग सोचते हैं कि हम एक्सप्लॉयटेशन करके लीडर बन जाएंगे, वो जीवन भर गड़बड़ी करते रहते हैं। उसका कारण बता रहा हूं कि आपने अपने एक्सप्लॉयट किया एक पोजीशन पे आने की, ठीक है, जिसमें कि आपने सीनियर को भी एक्सप्लॉयट किया, जूनियर को भी एक्सप्लॉयट किया, अपने कोलीग्स को भी एक्सप्लॉयट किया। अब आपको मालूम है कि जब आपने एक्सप्लॉयट किया तो दूसरा भी कोई एक्सप्लॉयट कर रहा होगा आपकी पोजीशन लेने के लिए, तो आपको टेंशन आएगी कि आप आराम से काम करोगे? उसका मतलब 50% टाइम तो आपका ये रहेगा कि कौन गड़बड़ कर रहा है मेरी कुर्सी के लिए। 50% टाइम क्या रहेगा कि कौन गड़बड़ कर रहा है मेरी कुर्सी को प्राप्त करने के लिए, और 50% प्रोडक्टिविटी दोगे तो एक दिन आपका क्या होने वाला है? जो 50% प्रोडक्टिविटी दे रहा होगा वो तो अपनी पोजीशन से जाना ही जाना है। So only a person who's detached can basically be a good leader who can look after. Leader का काम क्या है? Get the maximum from the people whom he is leading, so that they can have a complete life. They can feel secure. What can they do? Remember one thing. This is basically a management thing. That first thing people for getting the maximum productivity is to feel secure. Why do people join big companies? What do they want in them? Security. They want security. Because they know that the company रहेगी, हमारा जॉब भी रहेगा, मैं तो 100% दूंगा, परंतु आपकी कंपनी ऐसी है ABCD वाली जो कि रोज क्या होती है, इसका पता ही नहीं है कि चलेगी या नहीं चलेगी, क्या होगा, what will happen to that company. So what does the leaders पहला काम क्या है कि क्या पैदा करे अपने उसके अंदर, वो सिक्योरिटी पैदा करे। सिक्योरिटी के अंदर एक चीज बताइए, स्टेबिलिटी सिर्फ आपकी। That's how you train up leaders also. Because if a person is unstable and he becomes a leader, what will happen? He's insecure himself. He'll create insecurity amongst his people whom he's leading. So this is the meaning of Bhagavan. That is the name of Bhagavat. Now Gita means song. In Sanskrit it means song. Right now, how to use this? Depende na. Now I'm going to ask you a question, very simple question. Give me simple answers, because I'm not going to ask you complicated questions where there is complicated answers. And I'll tell you one thing: your question can be as complicated as possible, but the answers are very simple. That is actually what is spirituality. Material world, simple questions, complicated answers. In spirituality, most complicated questions, answer will be simple. I was just going through my internet, so I was basically got this speaking tree thing, that one problem, many solutions. But I basically say many problems, one solution. Spirituality means many problems, one solution. And what were they writing? One problem, many solutions. But actually there is not one problem, but there are miscellaneous problems in people's life. ठीक है जी, अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल। हम ये सब कर क्यों रहे? Ultimately, what do you want in life? You want to be absolutely right. Success. Is that right? Nothing wrong. To be successful, is it wrong? It's not wrong.
That's our nature to be successful. ठीक है ना जी? Now, second step. Is success different for different people? Is success first? Is success different people for different ages? Yes. How many of you say yes? Please raise your hands. Yes, be honest. मेरे को होनी चाहिए बीच वाले. क्या पूछोगे कितने बोलते हो कि नो तो उधर ना यस ना नो. Leader means what? He takes a stand. It may be wrong or it may be right. And when he's proved wrong, he accepts it and goes on to the right direction. So learn. मेरे इंडिया बता दो आपको, इंडियन अमेरिकन में अमेरिकन सक्सेसफुल क्यों है इतने बताओ एक चीज. हम लोग जब लेक्चर भी करते हैं जाके टॉक्स देते हैं तो एक चीज जो मैंने नोट करी है, दे आर नॉट अफ्रेड टू गिव रॉन्ग आंसर्स. एंड हम लोग दुनिया क्या कहेगी, दुनिया तेरा भविष्य बनाएगी कि तू स्वयं बनाएगा, स्वयं बनाओ. गलत बोलोगे. आई रेड अ वेरी नाइस कोट. दैट कोट स्टेटेड, यू आर इग्नोरेंट टिल यू डोंट आस्क अ क्वेश्चन. You are ignorant till you don't ask a question. The moment you ask a question, your ignorance is gone because you get knowledge. So when you answer, then only you will come to know. And हो सकता है कि आपके बोलने से, जो कि कुछ लोग शाई है नेचर से, जिसको कि हम इंट्रोवर्ट्स कहते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि इंट्रोवर्ट लीडर नहीं बन सकता, ये भी दिमाग में मत लाइएगा, क्योंकि इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो एक्चुअली एक फियर साइकोसिस है, उसको दूर किया जा सकता है, परंतु वो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज से नहीं हो सकता. मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज को कहता हूं कॉस्मेटिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट. एक बारिश पड़ते ही सब उड़ गया, बिकॉज दिस इज एक्सटर्नल. स्पिरिचुअलिटी इज इंटरनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जहां कैसा भी सर्कमस्टांसेस आ जाए यू कैन स्टैंड विथस्टैंड इट. परंतु जितना आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ये सब बोगस है, क्योंकि आपको एक्सटर्नली बोला जा रहा है. और मैं एक चीज बता दूं आपको कि जीवन के अंदर आप ध्यान रखिएगा, ये मैं मैनेजमेंट कॉलेज में हर जगह कहता हूं, मैनेजमेंट के अंदर पहली चीज जाइए कि आपकी वीकनेसेस क्या है. आप हो सकता है आपका नेचर जो है वो डेस्क जॉब का है. यू आर अ मैनेजमेंट पर्सन, यू गो इनटू फाइनेंस, डोंट गो इनटू सेल्स, राइट और रॉन्ग. That means you got limitations. Everyone has got his limitation. The salesperson goes into the finance department कि पैसा बहुत है. बिल्कुल सही बात है कि बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर जितना पैसा मिलता है सैलरी के अंदर, वो कहीं और नहीं मिलता. क्योंकि मेरे खुद के कजन के 2 बच्चे अमेरिका के अंदर फाइनेंस पढ़ा है. वो कहते हैं हमको 2 साल के लिए, हम ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल के लिए हमें जॉब मिलती है, दूसरे के बाद हमें बोल दिया जाता है कि नाउ यू गो एंड रिलैक्स एंड डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन, बिकॉज इन 2 years वी आर, हम जल जाते हैं. और फिर हम 4 वो करने के बाद आते हैं, फिर हम 4-6 साल और काम करते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर. उसके बाद हमें बोल दिया जाता है अब तुम जाओ ना, यू डोंट हैव न्यू आइडियाज, यू रिटायर. बट इन दोस 6-8-10 years वी अर्न सो मच, जो कि अब आप समझ लीजिए. बताओ कौन कमाता सबसे ज्यादा इनके बराबर? सर्जन. बोलता है सर्जन 10 lives में नहीं कमा सकता, हम 6-10 साल में कमाते हैं. परंतु हम 30-32 साल के बाद हमारे आइडियाज जो है वो खत्म हो जाते हैं. ओरेकल के ओनर ने कहा था कि आई टेक आइडियाज फ्रॉम माय 18 years old daughter बिकॉज आई एम नाउ फूल इन द इंडस्ट्री, बिकॉज आई डोंट हैव न्यू आइडियाज. समझ आ रहा है आपको? सो बेसिकली पहले लिमिटेशंस जानिए और फिर अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को क्या करिए, बढ़ाइए. परंतु मानिए इस बात को, पहले समझिए. मोटिवेशनल गुरु क्या कहता है आपसे? यू कैन बिकम सीईओ. गधे सारे सीईओ बन जाएंगे तो बेचारा नीचे कौन रहेगा काम करने वाला? That is what I fight I had with my father. My father said, "You want to become a clerk?" He cricket मैच करता है, खेलता है तो क्लर्क बनेगा. I got annoyed one day. I said, "My dude, tell me one thing. मुझे क्लियर करो, क्या क्लर्क को खुश होने का शौक, खुश होने का अधिकार नहीं है? क्या क्लर्क सक्सेसफुल नहीं हो सकता लाइफ के अंदर? क्या वो हेड क्लर्क बनेगा तभी सक्सेसफुल होगा?" मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा ये बताओ, क्लर्क बनूं या हेड क्लर्क बनूं या मैनेजर बनूं, जनरल मैनेजर बनूं, दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं, मैं सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूं, ये बताओ. तो फादर ऑल्सो गॉट क्लर्क होके सक्सेसफुल. कहां गए फिर? अब आपने कितने मानते हैं कि डिफरेंट पीपल एंड एजेस हैव गॉट
डिफरेंट, आपने कह दिया डिफरेंट सक्सेस क्या होता है, कितने मानते हैं एक ही होता है? क्यों मानते हैं? अच्छा इंसान बनना ही सक्सेसफुल अच्छा इंसान बनना ही सक्सेसफुल होता है। अच्छा इंसान बनना सक्सेसफुल होता है। अच्छा जी, 5 साल का बच्चा जब कंचा खेल रहा होता है, अच्छा होता है बुरा होता है? तो उसको ज्ञान ज्ञान नहीं होता, तो उसका मतलब अच्छा नहीं होता, तो वो पहले से अच्छा है। पहले से अच्छा है। नहीं दैट आई एग्री, हम थोड़ी मना कर रहे हैं, हमने मना थोड़ी किया। आपने कहा अच्छा बनते चक्कर है, आप ना एंड पॉइंट पे नहीं आए, मैं आपको लेके आ रहा हूँ। कंचा खेलना किसे कह दिया बुरा होता है? गेम्स खेलना अच्छा होता है, गेम्स खेलने में आप हारना सीखते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, लोग जो गेम्स नहीं खेलते उनको हारना नहीं आता, और जीवन में जो व्यक्ति हारना नहीं जानता वो हारेगा ही, वो 100% हारेगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि हर टाइम जीतता रहा है। बिल गेट्स भी गूगल को लेना चाहता था, क्या हो गया उसका? गूगल हो गया, नहीं ले पाया। So you can't win every day, every time. That's the foolishness that people think. I'll tell you for myself, I was not a very good student, but today I can talk to a Nobel Prize winner also. I sit and talk to them. I can teach them this knowledge. और वो थैंक यू करके जाते हैं। Everyone has got his own potentials. हमारे टाइम के अंदर होटल मैनेजमेंट के अंदर ग्रेजुएशन नहीं होती थी, डिप्लोमा मिलता था, 3 साल का डिप्लोमा था, 40 सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ते थे, जिसके अंदर क्या हमारे साथ में न्यूट्रिशन भी था, लॉ भी था, कॉमर्स, अकाउंट, सब कुछ सिखाया जाता था, परंतु डिग्री नहीं मिलती थी। I am not a degree holder, but I go and talk, give lectures in IITs and IIMs and MIT. Students कितने बढ़िया हैं, मुझसे क्वेश्चन कर ले तूने करा क्या? मैं सेकंड ग्रेड स्टूडेंट था, परंतु my field was this, my forte was this, right? So कंचा खेलना गलत नहीं है, वो खेलना चाहिए था। हारते तो आजकल बच्चे नहीं हार पाते, डॉक्टर साहब इतना मुश्किल हो जाता है। मेरे पास इंडस्ट्रिस्ट आते हैं, उनके बच्चों का ये हाल है कि अपनी दादी के साथ खेल रहे हैं, क्या लूडो खेल रहे हैं, और हार गए ना तो ऐसे उठा के फेंक देते हैं, बोले बेकार खेल गए, इसमें मैं हार जाता हूँ। जब जीत जाता है फिर हम उठा दिलाता है। तो मैं कहता हूं कि इसको अगर हारना नहीं सिखाओगे ना, इसको जीवन अंगूठा दिखाएगा। जब ये आपको अंगूठा दिखा रहा है, फिर जीवन आपको इसको अंगूठा दिखाएगा। So games help you in learning to do. So whenever you have an elocution contest or anything, take participate in that. Not for winning or losing, just for the heck of it. That's what Bhagavad Gita says. Effort oriented. What does it say? Not for results. I am not there for winning. I am not there for losing. Then why are you there for? I am there because I want to be there. कुछ भी आए जी आगे, क्या पता अच्छा ही निकल जाए, 2-4 पॉइंट और एलिक्यूशन जीत जाऊं, सोचे था जीतने का। जो जीतने का सोचता है ना, उसके सबसे ज्यादा पैर कांप रहे होते हैं, सबसे ज्यादा पैर कांप रहे होते, सबसे ज्यादा नर्वस होता है वो, क्योंकि हर टाइम उसके पास क्या क्या हो रहा है बताऊंगा, चिंता मत करो। आपको नाउ एक्चुअली द राइट आंसर इज दिस। आपने में से किसी ने कहा था कि सेम होता है, कोई जवाब देना चाहेगा आप में से? हाँ जी बोलिए। सक्सेस का मतलब तो ये होना कि सेटिस्फैक्शन, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होगे किसी चीज से, आपको सक्सेस नहीं है। आप जैसा बच्चे की बात कर रहे हो, उसको कंचा खेलना पसंद है, वो जीत गया तो सेटिस्फाइड है। एब्सोल्युटली राइट, एक स्टेप पीछे रह गए उससे, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। All of you actually are looking out for what does satisfaction give? I'll tell you. Happiness. All of you at any age are looking out for happiness. Why do you want something? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी हमारी? या आपने उत्तर दिया है, अब चिंता मत करना, या IITs और IIMs में भी उत्तर देते हैं। मुझे अमेरिका में भी इंटेल के अंदर बैठा हुआ था, वहाँ उनके टॉप साइंटिस्ट टाइप के लोग बैठे थे, उन्होंने भी ऐसी गलत उत्तर दिया था। तो आप भी उनके जैसे हुए, तो फिर क्या लगता है वो भी ऐसे, मैं भी ऐसा, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? क्या प्रॉब्लम? सो डोंट वरी, मोस्टली सेलिंग द सेम पॉइंट। ये क्वेश्चन मैंने बहुत लोगों से किया, उन्होंने यही जवाब दिया कि मैंने अभी पास टाइम नहीं है, तो मैं आपसे पर्सनली पूछता कि आप सक्सेस क्या मानते हैं। तो कोई बोलता है GM बनना है, कोई कहता है CEO बनना है, कोई कहता है मेरी फैक्ट्री हो, कोई कहता है ये हो वो हो। तो हकीकत में मेरे साथ एक बार ऐसे ही हुआ था, बॉम्बे के बहुत बड़े स्वीट मीट शॉप्स हैं, मीट लगाते जरूर है, परंतु एक्चुअली वो स्वीट शॉप्स होती हैं। तो दे गॉट लॉट ऑफ बिग स्वीट शॉप्स,
एक लड़का उनका जो था वो बेसिकली MIT से करके आया था, एक हार्वर्ड से MBA करके आया था। तो उनसे दोनों से बात हो रही थी, मैंने कहा ये बताइए आप मुझे कि आप सक्सेस का मतलब क्या है, यही प्रश्न किया था मैंने। तो उन्होंने साफ जवाब दिया, अटेनिंग द गोल, अटेनिंग द गोल, जो हमने लक्ष्य सेट किया है उसको अटेन करना है। मैंने कहा आपको लक्ष्य क्लियर है? मुझे कहने लगे, you're crazy. First thing we are taught when you go to Harvard and you go to MIT that what your goal is and that you have to attain. अच्छा भाई बता तो है क्या? Tell me the goal. क्या कहते हैं प्रभु जी MIT वाले? मुझे पता नहीं था. They had 12 factories which were supplying monopoly item to the defense. Now you, आप पता नहीं समझ पाओगे कि नहीं, पर आप टीचर समझ सकते हैं, समझ सकते हैं कि monopoly and to defense. Remember, doing business with government is best. Why? Because the government is the richest customer in India, and defense has got the maximum allocation of budget. And he had 12 factories which was supplying monopoly item to defense. And वो क्या कहता है, मेरी ऐसी 50 फैक्ट्री और हो जाए जो कि मोनोपोली आइटम डिफेंस को सप्लाई करे। ठीक है, क्लियर एकदम गोल? एब्सोल्युटली सर। ओके, दूसरा बोलता है मैं तेरा क्या इच्छा है MBA जो करके आया? बोला आई वांट टू हैव एटलीस्ट 1500 शॉप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने आर यू बोथ क्लियर अबाउट योर गोल? मेरा गोल नेवर शिफ्ट्स, रिमेंबर वन थिंग इन लाइफ। भाई बताऊंगा आपको इसको। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैंने कहा भगवान ना करे, मैं कहता हूँ तुम दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी अगले एक हफ्ते के अंदर, तो साथ में तुम्हें कैंसर 4th स्टेज मिलेगा। एक्सेप्ट करोगे? और मरोगे भी। What dangerous situation है प्रभु जी, because that is very मतलब तड़पता है तो जीता रहा। पागल हो क्या? Are you crazy? मुझसे कहने लगे, मैंने you are crazy। मतलब why? मैंने that means your goal is not this. Goal never changes. गोल का मतलब समझिए, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा वर्ड है ये। कई अंग्रेजी के वर्ड्स मुझे बड़े पसंद आते हैं। एक गोल किस लिए प्रभु जी कि फुटबॉल के अंदर जब गोल होता है, आप जब मार देते हो फुटबॉल के गोल के अंदर, तो क्या गोल पोस्ट चेंज हो जाती है कि सेम रहती है? उसका मतलब गोल जीवन में बदल नहीं सकता। जीवन में गोल बदल नहीं सकता। गोल में बॉल डालने का मीन्स बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? Right or wrong? But the goal remains the same, and that is called happiness. You basically use different means to attain that happiness. Now remember one thing. Now how to get happiness? Remember, first step, satisfaction. Second step, क्या लिखा? पीस, शांति। क्या कहते हैं उसको? सेटिस्फैक्शन से क्या आती है? शांति। थर्ड स्टेप इज हैप्पीनेस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद यू ऑल नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। देखिए जी मुझे प्यास लग रही है, बोले पानी लो, पानी नहीं, ऐसी प्यास बुझा दे। कैसे बुझ जाएगी? How do you get happiness without satisfaction? How? Can you get happiness without satisfaction? You can't. Satisfaction is an integral part of happiness. You cannot get happiness without till you are not satisfied. And tell me one thing, a person who is not satisfied, सिर्फ 2 पोजीशन है लाइफ में, ध्यान रखना, एक हैप्पीनेस की और एक अनहैप्पीनेस की। अनहैप्पीनेस आर ऑफ has got 2 parts. One is called to be suffering and the other is called tension. Unhappiness has got 2 parts. One is what? Suffering, and the other is called tension. इस पे भी अगर टाइम हुआ तो बात करूंगा। Now, we coming to this. Why I'm coming to this and topic is entrepreneurship, leadership, management. देखिए, जब तक कि आपकी सोच नहीं बदलेगी, आप ना तो अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ना अच्छा लीडर बन सकते हैं, ना लाइफ को मैनेज कर सकते हैं।
मैंने जो आए इंटेल में लेक्चर दिया था वो इसी पे दिया था, योगिक टेक्निक्स फॉर लाइफ मैनेजमेंट। नाउ योगिक टेक्निक होता है एक टांग पे खड़ा हो जाओ, दैट इज नॉट एक्चुअली योगा, दैट इज टुडे जो इसको योगा समझ रहे लोग, दैट इज नॉट योगा, दैट इज जस्ट फिजिकल एक्सरसाइजेस, दैट इज नॉट योगा। आई एम वेरी सॉरी टू से, परंतु वो योगा नहीं है। I'll come to that point just now. Now, ये बताइए हैप्पीनेस किससे मिलती है? सेटिस्फैक्शन और पीस को छोड़ दीजिएगा, सेटिस्फैक्शन किससे मिलेगी? हैप्पीनेस। अब हम सीधा डायरेक्टली हैप्पीनेस की बात करेंगे, ठीक है? ये मत बोलिएगा सेटिस्फैक्शन और पीस से हैप्पीनेस मिलेगी। हम आपसे पूछ रहे हैं कि कॉज क्या है हैप्पीनेस का, वो सेटिस्फैक्शन का कॉज क्या है? आप डिससेटिस्फाइड क्यों हो जाते हैं? आप सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते? आपको हैप्पीनेस क्यों नहीं मिलती? क्या कारण है? और इसका आंसर बता दूंगा, वन वर्ड आंसर है इसका। ग्रीड, ओके, इंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं होती, ओके, और कंपैरिजन, ओके। अभी तक जो आप बात कर रहे हो इन सब बातों को वैसे हम नॉर्मल पार्लेंस में क्या कहते हैं? अभी क्या हो रहा है हमारे बीच में जो हो रहा है? इंटरेक्शन ऑफ व्हाट? Knowledge. This is an exchange of knowledge. So that means आपने जो भी बात कही that comes under the parlance of knowledge. That means ignorance gives unhappiness and knowledge gives happiness. आप यहाँ क्यों आए हो सबके सब? Why? You want to be successful. And success का मतलब क्या है? To be happy. To be happy. कैसे? गलत जगह से खा लिया, तबीयत खराब हो गई, किसके कारण हुआ ऐसा? इग्नोरेंस। गलत व्यक्ति से बिजनेस कर लिया, कोई क्वालिटी को आपने अपने अंदर उसको आज ग्रीड कह दी, राइट, बट हाउ डू यू हैंडल इट? आपने डिसऑनेस्टी कह दी, आपने ऑनेस्टी कह दी, ऑनेस्टी इज अ गुड क्वालिटी, हाउ डू यू कल्टीवेट इट? एंड डिसऑनेस्टी अगर है मन के अंदर, उसको कैसे दूर कर सकते हैं? व्हाट इज रियल डिसऑनेस्टी, व्हाट इज ऑनेस्टी? इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? नॉलेज लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी, ज्ञान लेना पड़ेगा आपको। ज्ञान इसका हिस्सा है। आप कॉलेज क्यों आते हैं? मैं एक बार ऐसी लेक्चर दे रहा था, तो मेरे पेरेंट्स थे वहां, तो मैंने पेरेंट्स से पूछा, मैंने कहा बच्चे को क्यों भेजते हो स्कूल? उन्होंने कहा कि वो अच्छा व्यक्ति बनेगा। मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, देखो मेरे साथ झूठ मत बोलो, सच बताओ, इसके लिए भेज रहे हो ना? कि कल नोट छापेगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, एंड दे वर डिसऑनेस्ट। मैं सामने खड़ा था इसलिए क्या बोल रहे थे? अच्छा आदमी। बिल गेट्स खड़ा होता झूठ करवाने के लिए, सर, बिकॉज द स्पीकर चेंजेस एंड सो डज योर थॉट प्रोसेस चेंज। आई एम सॉरी, लीडर्स थॉट प्रोसेसेस डोंट चेंज. They are very clear about what they want, and they want what they want to get done. They are very clear about it. So be clear about it. So knowledge gives you happiness, ignorance gives you suffering. आज कैंसर क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों लोगों में प्रॉब्लम आ रही है? उस क्यों कारण क्या है? Because they do not know the cause. That means they are ignorant. Ignorance gives unhappiness. That means ignorance makes you unsuccessful in life, and knowledge makes you successful in life. Now, अब मैं उसी पॉइंट पे आया ना, मेरे फादर ने जब कहा कि क्लर्क रहकर मैं सफल कैसे हो सकता हूं? हो सकते हैं, नहीं हो सकते? I was giving a lecture in one of the corporates. I think that was Maruti Suzuki. They called me over for 2 days. तो वहां मैंने यही प्रश्न किया, मैंने कहा यही बताया था, मैंने कहा कि एक्चुअली लीडर्स को, उन बैठे थे, 4 हेड भी बैठे थे, सब बैठे थे, जो डिपार्टमेंट के हेड थे, मैंने कहा आप आज सक्सेसफुल कैसे हो? बिकॉज ऑफ योर जूनियर. इफ योर जूनियर्स वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यू वुड नॉट बी सक्सेसफुल. दैट मीन्स यू विल नॉट हैव टू कल्टीवेट योरसेल्फ, यू हैव टू कल्टीवेट देम. आज एक पेड़ कब फल देता है? जब उसकी जमीन अच्छी होगी. अगर जमीन गड़बड़ होगी तो पेड़ फल, परंतु जमीन को लेके नहीं जाता, परंतु क्या लेके जाता है? परंतु जानता नहीं है कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है.
उस जमीन की जैसी कल्टीवेशन करोगे वैसे ही फल मिलेगा, राइट और रॉन्ग प्रभु जी? हम लोग सारा अपना टाइम किस पे लगाए थे? जमीन को क्या करते हैं? भूल जाते हैं. So they remember, it is very important that both the aspects should be seen. Now I ask you a question again. आप लोग बहुत छोटे हो, पर समझ इतनी जल्दी आप आंसर नहीं कर पाओगे क्योंकि you have not seen life so much. But I'll ask the little जो जिन्होंने लाइफ देखी है थोड़ी सी. Last मैं लेके चल रहा हूँ 200 years, ठीक है जी? जिन्होंने थोड़ा सा सुना है पढ़ा है. Last 200 years के अंदर लोग खुश ज्यादा हुए क्या कि कम हुए? Happiness has increased or decreased? Decreased. Right, come on. चलो एक और क्वेश्चन देते हैं. Has in the last 200 years knowledge increased or decreased? Increased. Let us be honest. When we are talking, we should talk honestly. I am using this wireless microphone and I am reaching to you all. ये एडवांसमेंट हुई है कि नहीं हुई है? आप कैसे मना कर रहे हो? लाइट है, एडवांसमेंट हुई है नॉलेज की. अब सेकंड क्वेश्चन जो आया कि हैज हैप्पीनेस इंक्रीज्ड? हैज हैप्पीनेस इंक्रीज्ड? माय अदर क्वेश्चन इज और कंफर्ट्स इंक्रीज्ड? देखा गड़बड़ कर गए ना. अब हैप्पीनेस को सोचने लगे, कंफर्ट्स के साथ आप इसको जोड़ने लगे. हैप्पीनेस को आपने हॉस्पिटल में पढ़ा है फोर्टिस के अंदर, ठीक है जी? सिंगल सीटर रूम है, फर्स्ट क्लास. हैं जी? एसी लगा हुआ है. ही इज वेरी हैप्पी. इज ही? ही इज कंफर्टेबल बट ही इज नॉट हैप्पी. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंफर्ट, सुविधा और खुशी में एक अंतर है. आज लोगों को यही नहीं पता कि सुविधा और हैप्पीनेस में फर्क है. यू पीपल आर ऑल ट्राइंग फॉर कंफर्ट, नॉट फॉर हैप्पीनेस. दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे आर अनसक्सेसफुल. आज मोदी जी ने बोल तो दिया एवरीवन बिकम मेड इन इंडिया हो जाए, एंटरप्रेन्योर बन जाए सबके सब. But does that make them successful? I was just talking to him when I was in. You go to the internet also, you'll get it. Second highest, the most selling medicine in America, which is considered the most developed country in the world, most powerful country in the world, is the medicine for depression. Very healthy society. आप नकल मार रहे हो. दूसरी चीज, 87% of the Americans visit a psychiatrist at least once in their lifetime. किसी गांव वाले का आ जाए कोई साइकाट्रिस्ट है, मुझे क्या होता है? वो मन का, अच्छा पागलों का डॉक्टर. एक्चुअली बात तो यही, पागल कौन है? पागल वही है जिसकी गड़बड़ मानसिक रूप से गड़बड़ है, उस डिसीजन नहीं ले सकता, समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है. वो डिफरेंट पागल के स्टेज होते हैं. फिर वो ट्रैफिक चौराहे पे कब पहुंचता है वो बात अलग है, परंतु स्टेजेस तो अलग अलग होते हैं. There are different stages. And 57% of them visit the psychiatrist every 2 years. And you want to do what? Follow them. They may be a country with lot of comforts, but they are not a country with happiness. I'm sorry to say that. That is why today they are looking out for happiness, the formula for happiness in the East. आज वो हमारी तरफ देख रहे हैं, East. When I say East, because East has got a lot of philosophies, they are looking towards Eastern philosophies, like the Vedas, the Buddhism. ये सब Eastern philosophies हैं. They are doing very well. I was just reading an article that in LA, Los Angeles, कि वहाँ बता रहे थे कि जो मेन उनका एक मार्केट है, उसकी स्ट्रीट है, उसमें 90% जो है, जो शॉप्स हैं, they are related to yoga. कोई ABCD योगा तो कोई योगा, नए योगा निकालते. That means what? And people are visiting them. People are visiting them in hordes.
Now you want to be successful in life, right? सबके सब तो ये चाहते हैं, जो नहीं चाहता है तो फिर बेसिकली वो सोच सकता है पर घराटे नहीं ले सकता। पर आप सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा, देखिए मैं थोड़ा ना, हमारे शास्त्र भी थोड़ा ब्लंट बात करते हैं। आप लोग जीवन में ना जो विनिंग एंड लूजिंग जो देखते हो, अपने आप से नहीं देखते, दूसरे के साथ कंपेयर करके देखते हो, राइट और रॉन्ग? आप पूरा जीवन अपना कंपैरिजन में गुजारते हो कि उसका ऐसा है और खुद रोते रहते हो जीवन भर। मैंने टॉप सीईओज देखे हैं कंपनी के, और जब वो पहुंच जाते हैं उस टॉप पोजीशन पे, फिर आगे देखते हैं मैं तो ये सोचा था परंतु ऐसा तो हुआ नहीं, because they were not happy. I met a person and he was working with one of the topmost ancillary units हैं उनकी, basically they manufacture steering और उसका पूरा wheel का सारा कुछ बनाते हैं वो। They are a Japanese company. He's the CEO in India. He's got about almost 5,000 managers working under him. When I talked to him, I was basically in a seminar with him. So he said, I know how many managers are working with me. I do not know how many workers are there because I'm not interested in them. Because I can't go down, percolate down to the workers and do it. As a CEO, I can just go up to the head of the department and the next head of the department. I can't go that much down. तो उसने बताया मुझे 5,000 मैनेजर्स हैं हमारे। तो मैंने उससे कहा, तो वो मुझे कहने लगा, अरे प्रभु जी, लाइफ इज यूजलेस। मुझे कहता है प्रभु जी, एंड ही वाज ओनली 42 years old। मैंने कहा तेरी पोजीशन को प्राप्त करने के लिए लाइन लगी है, तेरी पोजीशन को प्राप्त करने के लिए लाइन लगी है, परंतु ध्यान रखिएगा, आप मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, you may become a CEO also. Then also you can be successful, and if you can't become a CEO, then also you'll be successful. Now what is that? अभी हमने बात करी आपसे कि नॉलेज जो है बढ़ी है, ये तो मानना पड़ेगा, परंतु नॉलेज बढ़ने के बाद एक्चुअली कंफर्ट भी नहीं बढ़े। आप जिसको कंफर्ट सोच रहे हो, टेंशन्स बढ़ी है। आज अजीब बात यह है कि 6 साल के बच्चे से पूछो, बेटा क्या हो गया? टेंशन में हूं। तेरी को कैसी टेंशन? रिक्शे वाले के पास चले जाओ, प्रभु जी तो दुखी है? नहीं दुखी नहीं, टेंशन में हूं। आज द इनवर्ड इज टेंशन। एवरीवन, और आपको कुछ बताऊं, 2 शब्द हैं, एक टेंशन है, एक सफरिंग है। टेंशन को आप बुलाते हैं, सफरिंग हो जाती है, टेंशन को आप बुलाते हो। अभी समझाऊंगा आपको, चिंता ना करो। आज वर्ल्ड ओवर स्टूडेंट्स, एनीवन प्रभु जी, एवरीवन इज टेंशन। अब आपसे एज मैनेजमेंट पीपल आई आस्क यू वन क्वेश्चन, जो टेंशन में होता है उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी खराब होगी? तो सब ध्यान रखिएगा, आज का विषय नहीं है। स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड। Remember one thing, stress is good, tension is bad. Because stress is effort related, tension is result related. Tension is result related and stress is effort related. It is good, it should be there. But it should never convert into tension. Because tension will lead to depression, depression will lead to suicide. That's how it works. First tension, then depression, then and tension is not given by others, it is self-created. Remember one thing, tension is never given by others, it is your created by your own self. अब आगे चलते हैं। ज्ञान तो है, ठीक है, ये मान लिया। अब हमने ये सिद्ध कर दिया ज्ञान तो है, फिर ये सुख क्यों नहीं दे रहा? उसका मतलब इस ज्ञान में किसी और ज्ञान की कमी है, राइट और रॉन्ग? बिकॉज नॉलेज का हैप्पीनेस क्या देती है? नॉलेज से ही आती है, और किसी चीज से नहीं आती। अभी अगर मैं आपको सिखाऊंगा कि टेंशन कैसे दूर करी जाए, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ
नॉलेज। सो नॉलेज ही हेल्प करती है हैप्पीनेस अटेन करने की है। दैट मींस नॉलेज ही आपको सक्सेस पे लेके जाती है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर हैप्पीनेस चाहिए जो अभी नहीं मिल रही है इस नॉलेज से, उसका मतलब इसका पूरक जो होगा, जो उसको कंप्लीट करेगी, वो भी क्या होनी चाहिए? नॉलेज ही होनी चाहिए। इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। It cannot be fulfillment of your desires. Please, for God's sake, understand this thing. Because sometimes you may desire the wrong thing. Like a child. I call people who are 80 years old also, sometimes I call them as children. Because the child, when he's, well, for a 5 years old child, he's got a bad throat, he's got a cold, but he's asking for ice cream. And he thinks that if he eats ice cream, he feels so good. And when he feels so good, that means that is what life is all about. But I'm sorry. When you are sick, certain things have to be avoided. You can't basically accept everything. Now the question comes that what is that knowledge which is missing? 5 minutes के अंदर बता रहा हूं आपको, ध्यानपूर्वक सुनिए। पहली उसमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। सिंपल आंसर्स हैं, मुझे सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपल आंसर्स दीजिए। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, स्टेटमेंट है किस्म से, तो है क्वेश्चन रूप में। ध्यानपूर्वक सुनिए। जो व्यक्ति अपना सारा समय या ज्यादा समय कम महत्वपूर्ण चीजों पे लगाता है, वो ज्ञानी है या अज्ञानी? रिपीटिंग इन इंग्लिश, पर्सन हु गिव्स some of his time or all of his time for less important things, is he called knowledgeable or a person in ignorance? अज्ञानी व्यक्ति खुश होगा कि दुखी? पहला इस प्रेमाइसिस से आगे चलते हैं। सिंपल आंसर करिएगा। जीवित शरीर और मृत शरीर, which is more important? Absolutely right. Simple question, simple answer. Living body is more important than dead body. Number 2, living body and dead body, इसमें क्या चीज है दोनों में कॉमन है? फर्स्ट क्लास। You are intelligent people. Third, now again I want a simple answer, जो कि एकदम मूर्ख आदमी भी आंसर कर लेगा। लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में कॉमन क्या है? परंतु लिविंग बॉडी डेड बॉडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब लिविंग बॉडी में क्या ऐसी चीज है जो कि इस बॉडी को, जो डेड बॉडी है, उससे ज्यादा बनाती है, इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली राइट, लाइफ, बिल्कुल सही। इज इट राइट? सो व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट, लाइफ और बॉडी? लाइफ। एंड हाउ मच टाइम आर यू गिविंग टू स्टडी लाइफ एंड हाउ मच टाइम आर यू गिविंग टू स्टडी बॉडी? पूरा जीवन किसको समझने के लिए लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं? शरीर को जानने के लिए या जीवन को जानने के लिए? सारा जीवन बॉडी, लाइफ को तो आप जानते ही नहीं है। चेतना में जानते हो क्या होता है? पता है कॉन्शियसनेस क्या है? टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहा हूं, लाइफ को आप समझ लो, जो लीड कर रहे हो। मैं आपकी लाइफ की बात कर रहा हूं, जो आपके अंदर है, जो निकल जाती है तो क्या हो जाते हो? डेड। मैं उस पर्टिकुलर लाइफ की बात कर रहा हूं, जो लीड कर रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। That means when you're giving all your time to study a less important thing, will you be happy or unhappy? Will you be successful or unsuccessful? How can an unsuccessful person be a leader? How can an unsuccessful people open up a business and become an entrepreneur? And how can an unsuccessful person manage his life? Can he? Why is Bill Gates at this end of his fag end of his career is basically thinking only for doing charitable work and only given 7% of his total wealth to his children? पता है? उसने बिली कर दिया सीधा। और आजकल के माता पिता इतना कमाऊं कि 7 पुश्त खाएं। सब नॉलेज नहीं देंगे उनको, गधे की तरह काम करते रहेंगे।
That's why I tell all parents, please, it is not your work to give them a single pie. He should earn it himself. Then only he'll understand the importance of work. Your work is to give him knowledge. Now this knowledge of life is known as spirituality. This knowledge of life is known as spiritual science. And that is what Bhagavad Gita is talking about. Bhagavad Gita is not talking about anything else. Other people are using Bhagavad Gita wrongly for their own ends. It does not talk about the body because Bhagavad Gita has got nothing to do with the body. But when your life becomes good, you understand this important factor of life. What does it answer? I'll tell you first thing, what does it answer? How many of you know the purpose of this human form of life? बताइए आप में से कितने जानते हैं? Can you be successful without knowing the purpose? If you get an instrument and you do not know the purpose of that instrument, can you be successful in using it? So first thing in life, what I have to understand, why this planet Earth is there? Why was it created? Why was this body created? Do you know the answers to this question? So can you use this body properly? After knowing everything about this body, you say that you're going to manage. Because what are you going to manage? Your body and the body of others. Right or wrong? Body means mentality also, remember one thing. Mind is a part of the body. Mind is a part of the body. How can you manage? How? How can you lead with insufficient knowledge? Remember one thing, when you get leaders which have got insufficient knowledge, they are the most dangerous. Neem Hakim, Khatre Jaan. Famous saying है, अधूरा ज्ञान बहुत dangerous होता है. बहुत dangerous होता है. This is what I actually, when I was 25 years old, I understood this, that, and then I thought that there were no teachers for this. My teacher, his name is Srila Prabhupada, he basically told us that I want people from intellectuals to come in and take up this knowledge and present this knowledge to intellectual class of people. Because Gita बड़ी अजीब चीज कहती है प्रभु जी की. गीता कहती है what leaders do in society, general masses follow. ये गीता कह रही है, leadership पे बात कर रही है. What leaders do in society, general masses. That means if you have leaders who are only interested in the body. Now I'll tell you about the body का thing problem. आज slogan क्या है? There is one lifetime, enjoy it. Right? That's the slogan which is famous. Then why should I have any morality? क्यों moral होंगी? बताइए आप. मैं अगर आपको लूट लूँ क्या फर्क पड़ता है? और मेरा पावर है. आप लूटने के बाद FIR कराने जाओगे, पुलिस वाले मारेंगे आपको. बिहार यूपी. आपके सामने examples. That is why I got a student who was doing engineering. And he took initiation. He was in the second year. He took initiation. After that, he told me, बोलते प्रभु जी आपसे मिलने के बाद मेरी मेंटालिटी चेंज हुई. उससे पहले क्या थी? बोलते उससे पहले ये थी कि मुझे पावर चाहिए, पावर. मेरे किसने चाहिए थी? बोलते कि मैं कोई गलत करूं मुझे कोई पकड़ ना सके. नहीं तो पावर का करना क्या चार डालना है? सही बातें गलत बातें बताइए आपने. उसको दूसरों के भला करने की उसकी इच्छा नहीं थी. एक और था हमारे पास आया है, वो क्या कहता था, मैं आईपीएस से बैठना चाहता हूँ. मैंने किससे बैठना चाहता है? बोले पुलिस वाला बनूंगा मैं. तो क्या करेगा? घूस खाऊंगा. 18 घंटे पढ़ रहा था वो. कितने घंटे? 18 घंटे पढ़ता था. 19 घंटे पढ़ता था. Because see, I tell you reason. Life is for enjoyment and you go to hell. मैं तुमको लूटूंगा. मैं जितना लूट सकता लूटूंगा. सही बातें गलत बातें बताइए आप लोग जी. उसमें क्या गलती हो गई? फिर मजा करना है जीवन का लक्ष्य है. Then I use my parents. Still I want to use my parents and I kick them out. Is it right or wrong? That is what America is doing. Their parents are actually more smarter. वो देखते हैं बच्चा जब लूटना शुरू करता है, लात लगाए, चल भाग जा, बाहर जा, पेट्रोल पंप पे पैसा कमा. Right or wrong, डॉक्टर साहब? नहीं करते. अब ये चल रही है कौन किससे स्मार्ट है. जबकि माता पिता का काम था
अब वो माता पिता ने कहा ये मुझे यूज कर रहा है, hey, before you use me, get out. Now the basic fact is this. Now how do you come to this leadership thing? How do you come to manage this? How do you basically entrepreneurship? Why do you want money? You want to basically आज entrepreneur कभी नहीं सोच रहा, जबकि entrepreneur देखिए ध्यान रखिएगा, entrepreneur कौन होता है बताइए? entrepreneur का पहला गुण क्या होता है? कौन बताए? पहला उसका पहली क्वालिटी क्या है? Absolutely right. He is fearless. He is not bothered. He is ready to take this. अब मैं आपको बता रहा हूँ एक व्यक्ति का. He gives lectures in a lot of corporates. He is almost 68, 69 years old. A very successful businessman. जिसने 800 करोड़ में अपनी बिजनेस को बेचकर, यहीं के महेश्वरी हैं जयपुर के, उन्होंने बॉम्बे में बिजनेस किया था, 800 करोड़ की अपनी कंपनी बेचकर वो यहाँ आए और वो बेसिकली ही ट्रैवल्स ऑल ओवर इंडिया गिविंग लेक्चर्स. उनसे एक बार मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया बिजनेसमैन कौन होता है? तो मैंने उनसे पूछा एंटरप्रेन्योर कौन होता है, रियल एंटरप्रेन्योर कौन है? रियल एंटरप्रेन्योर जो है वो बताऊं, वो बिजनेस जीवन चलाने के लिए नहीं करता, वो बिजनेस करता है क्या करने के लिए? पैसे कमाने के लिए. अगर जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, मैं बिजनेस करना चाहता हूं कि मेरा सब कुछ, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे पास रहना हो जाए, he is not an entrepreneur. He is not an entrepreneur. He is not an entrepreneur. हैं? हाँ बिल्कुल. He told me this. He said, I tell the people when people come to me to take advice that I am an entrepreneur, उनसे पहली चीज होती है इच्छा क्या है? जब वो कहता है पैसे, मतलब ठीक है, right, you are the person. पर तो वो कहता है साहब घर वर सही हो जाए, मेरा घर भी बन जाए, अच्छा गाड़ी हो जाए, तो भाग जा यहाँ से, नौकरी कर. क्या कर? पर तो नौकरी करके क्या आप लीडर और एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते? ध्यान रखिएगा, देयर आर 4 लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस. हमारे जो भगवद गीता शास्त्र बताते हैं, उसमें पहला लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है जो कि बिल्कुल फियरलेस व्यक्ति होता है, जिसको कि हमारे पार्लेंस के अंदर जन्म से नहीं है, ये इज अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियसनेस, इसको ब्राह्मण कहते हैं. क्योंकि बेसिकली ये टीचर को होना चाहिए. किसको होना चाहिए? ही इज फियरलेस अबाउट द फ्यूचर. He tells the truth and he's got nothing to do. पैसा आया आया, नहीं आया नहीं आया, मुंह पे सुन, जो सही है जो गलत है. This is the qualification of actually a Brahmin. First thing, and he is basically, ये qualification कब आएगी? वो संतोषी होगा. क्या होगा? कि जो मिलेगा ठीक है, कार्य करूँगा, गलत हो तो गलत हो. सेकंड लेवल आता है, उसको कहते हैं क्षत्रिय, एडमिनिस्ट्रेटर. इसमें थोड़ा सा फियर आता है. ये चाहता है कि मेरे पास मैं वॉरियर बनूं, तलवारें रखूं, ये करूं और फिर क्या करूं, और दूसरे किंगडम्स को टेक ओवर करूं, अपना बचाव करूं. तो इसमें थोड़ी सी फियर की, जो फियर है बढ़ता है. क्या होता है सर? पर वो इस फियर में दूसरों को नुकसान बता सकते. कौन सर वो पहला वाला टीचर, जो आपने एग्जांपल बताया, क्षत्रिय. हाँ बिल्कुल. जितना आदमी फियरलेस होगा वो दूसरों का नुकसान नहीं उठाएगा, उतारे. क्योंकि ध्यान रखिएगा, क्षत्रिय फियरलेस, जब क्षत्रियों क्या करना पड़ेगा? He has to work under the person. मैंने जब 2 क्वालिटी बोली, अभी सारी क्वालिटी नहीं बोली, 2 क्वालिटी. फर्स्ट इज fearless, दूसरा इज संतोषी. क्या है? संतोषी व्यक्ति कभी किसी को गड़बड़ कर सकता है? आप गड़बड़ कब करते हो किसी के साथ? हाँ, जब उसको भी लूटना चाहते हो, मेरे पास तो है, तेरे पास क्या है? तेरा भी मुझे दे दे. नेक्स्ट लेवल कम्स द बिजनेस क्लास और द मर्केंटाइल क्लास. They are actually very fearful of their money going. That is why अपना भी चाहते हैं, दूसरा का भी चाहते हैं. ठीक है? परंतु they are fearless in the matter because they give importance to money. So they are fearless in the matter of earning money. This teacher is fearless in understanding the supreme. He is interested in that. The Kshatriya is interested to make demarcations for the country, look after the country, administration, army and all these things interested. Then comes these Vaishya. So these are all entrepreneurs because they are in some level. Then comes the 4th class, which are workers. Like for me, they are called Shudras, but actually I was working as a general manager, I was working for a businessman, I am actually a Shudra. At that particular point of time, I was a Shudra. So, but why do I become a worker? I can't take risk. मैं सोचता हूँ यार अपने, मैं तो अच्छे देखे हैं प्रभु, जो मतलब I have talked to many of them. मैंने कहा यार तू पैसे कमाकर इतने बड़े बड़े बिजनेस को दे रहा है, तो खुद क्यों नहीं बिजनेस डालता? यार अपन तो नौकरी में ही ठीक है.
He is giving advice because of this big people are earning. And आपकी जानकारी के लिए, रॉकफेलर का नाम सुना है आपने? 67 he was the richest man in the world. मेरे एक मित्र हैं, उनके फादर, he became a very big industrialist later on. बता रहे थे कि मैं अमेरिका जा रहा था, तो मैंने रॉकफेलर से बोला कि I want to get some time from you. तो रॉकफेलर से उसने जब टाइम लिया, तो उन्होंने कहा I give you time for one question. For one question. तो ये उससे जाके न्यूयॉर्क के अंदर रॉकफेलर हाउस में मिले. जब गए मिलने के लिए उसने कहा yes one question. उन्हें what is the secret of your success? रॉकफेलर ने क्या जवाब दिया? I know how to use the brains of others for myself. I know how to use the brains of others. And this is actually the worker class. The white collar class आपके highest level पे वो business नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकता. वो कहते हैं ना, दमड़ी के लिए चमड़ी भी चली जाए. So this is actually an you have need, because you have to analyze for yourself. If you are basically आज हुआ क्या प्रॉब्लम? Entrepreneur becomes पुलिस वाला, क्या करेगा? धंधा क्या करेगा प्रभु जी? And he is fearless about it. He is fearless because wrong mentality in the wrong place. सही बात है गलत बात है बताइए आप मुझे. आज I am sorry to say एकदम क्लियर है. वैश्य मेंटालिटी टीचिंग लाइन में घुस गया. क्या कर रहा है? धंधा. जब आप ऐसा करते हैं तो आप पूरे सिस्टम का सत्यानाश कर देते हैं. इसी को कहते हैं. जब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, हमारे शास्त्रों में पहले ही था. जब बच्चा छोटा होता था, बड़ा होता था ना, तो उसको उसके निर्धारण रखिएगा पेरेंट्स से, रिश्तेदारों से, जो आसपास गांव में रहते थे वो, उनके टीचर से पूछा जाता था ये मेंटालिटी क्या है इसकी, और फिर उसको उसके मेंटालिटी के अनुसार उस चीज में लगाया जाता. अब ऐसे क्षत्रिय की मेंटालिटी हो प्रभु जी, और बिजनेस में बिठा दो तो क्या करेगा? पैसे दे नहीं दे तलवार बंदूक निकाल लेगा. बोले पैसे ला भाई. अरे ये तरीका वैश्य का नहीं होता. वैश्यों का तरीका क्या होता है? दे विल बी हम्बल. बाद में 4 गाली देंगे, देखा निकलवा लिया उससे साथ. मतलब बेसिकली शुरू में अरे दे दो भाई, गरीब आदमी हूं, पीछे मर्सिडीज खड़ी है. So the basic fact is this, that you have to understand yourself. Please do that. Please do an introspection. You will be successful in life. Because please, at the end of the day, it is only happiness which gives you happiness, which makes you feel successful in life. Till you are not satisfied with what you have been doing. That's why I have seen older people. जो इंटेलेक्चुअल्स को मैं ज़्यादातर सेटिस्फाइड देखा. जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे ना, वो ज़्यादातर सेटिस्फाइड होते, बिकॉज मोस्टली दोज पीपल ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर सेटिस्फाइड एंड दे टुक अप दोज प्रोफेशंस जहाँ टीचिंग लाइन में पैसा कहाँ जाता. जब तक कि आप बंसर क्लासेस नहीं चलाते तब तक हमारे पैसा नहीं. एक ठीक पैसा है, परंतु क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? अगर आप नहीं है ना प्रभु जी, तो प्रॉब्लम है आपके साथ. आपको चेंज करना चाहिए. आपको, आप जिस मेंटालिटी के, उस मेंटालिटी में जाना चाहिए. दैट इज वेरी गुड. you'll be able to give better in life. Is it not so, Prabhuji? You'll be able to give better in life. So sit down, analyze yourself. There's no problems, because it is not the businessman, only the entrepreneur who's running the concern. It is also the people who are next line to it. They are also there. And this person may be a person, a worker, but the basic, this is the person who's giving the whole, जिसे कहते हैं security to the owner to take risks. कि मेरे ख्याल से आप इस चीज में डालिए. And it is advice, because he is not attached to the results. He is basically giving right advice. He is thinking good of the owner. Then automatically, that is also an entrepreneurial position. It is not only that you start an enterprise, business start करने से आप entrepreneur बन जाएंगे, ये जरूरी नहीं है. आप अपने आप को देखिए, अपने नेचर को. कई बार होता है बिजनेसमैन बन गया, संतोषी है वो, उससे पता क्या होता है, घर में भी पूछते क्या किया, आज 2 साइकिल बेच, बस. तो और क्या, ठीक है, अपना घर का खाना चल रहा है. अब वो एंटरप्रेन्योर थोड़ी है. अब वो उसकी दुकान जरूर है, परंतु वो एंटरप्रेन्योर नहीं. वो एंटरप्रेन्योर होता है जो 10, 50, 100 के और घर भी चलाता है. ध्यान रखिएगा. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन सोसाइटी. इट इज नॉट अ जोक. It's not a joke. It is such an important position in society.
So that is why now I am talking to you about that this spiritual knowledge. मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूँ मैंने सब भगवद गीता से सीखी है. आपकी जानकारी बता दूँ मैं आपको. I am the only person in the world who became a general manager of a 5-star hotel with only 6 months experience. Because I taught Bhagavad Gita for 6 years. I challenge my friend, you place me in front of any board, tell them not to see my papers, let them interview me, I'll clear it. And I became a general manager at the age of 30. I challenge them, and today also I challenge any corporate in the world that you don't see me a curtain which will रख दे तो क्वेश्चन पूछ मैनेजमेंट में जो पूछना चाहता है मैं आंसर दूंगा. Because I say man age meant, man of what age is meant for what, that is actually management. Age means of what mentality. That is how I define management. Man for of what age, of what mentality is meant for what. If you can put the right peg in the right hole, you are through. आज होता क्या है? Round peg in square hole. क्या होगा प्रभु जी? लकड़ी का नहीं है, ध्यान रखना. ऐसे मेटल का है कि ठोकते रहो, ठोकता नहीं है. जीवन में अंत में क्या होता है? बाहर के बाहर रह जाते हो. Now, till when you take up to spiritual, you understand the spiritual life, and then you connect it. Then what happens? That is the perfection of knowledge. Then you come to know that how to face bad times. Today all of you are guided by circumstances. Spiritual life, which is internal, which internally develops you. Actually, you learn how to control circumstances and not to be controlled by circumstances. जिसको पे हम कहते हैं proactive. क्या कहते हैं प्रभु जी? IIM में मैंने 88 में लेक्चर देते हुए कहा था IIM के अंदर क्या चैलेंज यू कि भगवद गीता अगर फॉलो नहीं करते तुम प्रोएक्टिव हो ही नहीं सकते. और आज मैं एक स्टेटमेंट और बोलता हूँ आपको कि जो भी व्यक्ति लाइफ के अंदर सक्सेसफुल है मेटीरियली भी, वो अनजाने या जाने रूप में भगवद गीता को फॉलो कर रहा है, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है. आज आपने क्या नाम है उसका, सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, वॉरेन बफेट, उससे उसका आपने इंटरव्यू सुना था, आया था, उसका क्या लिखा कहा था उसने कि मैं कर देता हूं शेयर खरीदने, कंपनी लेनी है, खरीद लेनी, रिजल्ट क्या होगा मैं नहीं सोचता. अब कई बार फेल होता है तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कई बार जीतता हूं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता. दैट इज व्हाट भगवद गीता सेज कि हर सिचुएशन में सम रहो. क्या रहो? नाउ दैट क्वालिटी ही और हैज, उसका मतलब उसके जीवन के अंदर कोई टेंशन ही नहीं. जब उसके जीवन में टेंशन नहीं होता उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आज आप इंटरव्यू के अंदर सब, क्योंकि मैंने एक पूरा 5-स्टार होटल पे सेट किया था, मतलब इंटरव्यू ऑलमोस्ट 8,000 पीपल. आज इंटरव्यू में आप क्या जाते हो कि अगर नहीं मिला तो मेरा क्या होगा? क्या होगा? खा जाएगा. हैव कॉन्फिडेंस इन सेल्फ कि नहीं मिला, नहीं मिला, मैं सिर्फ अपना इंटरव्यू सही तरह दूंगा, रिजल्ट पे मत जाइए. जहां आप रिजल्ट पे जाते हैं, if you give me 5 minutes I'll explain to you one thing, that how to overcome tension, because you have tension when you're going for the interview. The only problem with you, आप ये सोचते हो यही मेरी जिंदगी है, इसके बाद everything comes to an end. I'm sorry, हमने बचपन से सुना है failures are the pillars of success, but you should know how to make these failures as pillars of, you have to know how to make them. आप समझ लीजिए टेंशन क्या होती है. पहले शुरू करते हैं पहले एक चीज से. ये है फ्यूचर, ठीक है जी, ये है प्रेजेंट और ये है पास्ट. ओके, नाउ टेंशन का नाम बता दूं आपको. एक टेंशन को बोला जाता है थिंकिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट. क्या बोला जाता है? एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है इसका पता ही नहीं. Not tangible, you don't know. And what is not tangible in these three? Future. That thing which is not in front of you, अंधेरा है. What does it create? Fear. It creates fear. कल आपको पता नहीं क्या होने वाला है, तो कल क्या क्रिएट करेगा? अब पूछता हूं, दो चीज लिख रहा हूं. Which is in the future? Result. So what will result give you? Fear.
And the other name of fear is tension. आप क्या करते हो जीवन में? आज अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कल क्या होगा? मैं दुखी नहीं हूं, मैं दुखी कैसे हूं? Start thinking of the future, and the future is in the dark, and the dark creates fear. Then tension is nothing but fear. All of you are basically working on this. But आपके हाथ में क्या है? जहां इसके बारे में सोचना शुरू किया, अब समझ लीजिए, मैथमेटिकली बता रहा हूं, 100 है, ठीक है, आपका टोटल सोचना। अब क्या होता है जब आप रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, तो जैसे जैसे रिजल्ट के बारे में जितना आप सोचते जाएंगे, उतना जैसे आप 50 सोच रहे हैं, ये बढ़ रहा है 60, तो ये 50 रहा, फिर ये कितना हो गया 40, फिर ये 70 हुआ, ये 30 हो गया, ये 80 हुआ, ये 20 हुआ। जब एकदम इंटरव्यू आया तो ये 10 रह गया, ये 10 रह गया और ये 90 हो गया। तो क्या होगा मेरा? क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला तेरा, क्योंकि तेरा एफर्ट तो कितना रहेगा 10, और तू सोच भी रहा है रिजल्ट मेरा गड़बड़ी होगा। तो 90 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया और आप एक एनर्जी एमिट कर रहे हैं, मेंटालिटी एमिट कर रहे हैं, किसको? जो सामने बैठा हुआ है। और वो क्या एनर्जी ले रहा है आपका? नेगेटिव एनर्जी ले रहा है कि आपको बेसिकली ये ऐसा लग रहा है कि इसके लायक नहीं है, लायक आपने बोल रहे हो, अंदर से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? मैं लायक नहीं हूं, फेल कर दे, फेल। He is getting those vibes. Sometimes you meet people, you get certain vibes or not. And you get vibes only from those people whom you are not attached or detached. If you are attached to somebody, you get the wrong vibes. If you are again detached, का मतलब ये है कि ये गलत है, बेकार आदमी है, तो बेसिकली उसके साथ भी vibes आपके कभी सही नहीं आएंगे। आप न्यूट्रल होके जाइए, देखिए vibes मिलते हैं। तो आपका जो इंटरव्यूअर है, वैसे जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, वो तो आपसे न्यूट्रल है, वो तो जानता नहीं, परंतु आप एक्चुअली न्यूट्रल नहीं है उसके साथ। अब जो 90% तो सोच रहे थे कि आप फेल हो गए तो क्या होगा, रह गए तो क्या होगा, तो वो क्या होगा उसके अंदर? He is getting those vibes. He is getting those vibes. And you're clear, but if you're basically, I have to give my interview finish, कल क्या होगा, मुझे क्या करना है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता कल के बारे में, मैं रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिस चीज में आप कुछ कर नहीं सकते तो आप चक्कर में पड़ते क्यों? Why do you go into this? You create tension. ये सिर्फ अब ध्यान, अभी तो आप स्टूडेंट इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, सब के सब बैठे हुए जीवन के अंदर ये करते रहते हैं, प्रभु जी कल क्या होगा। और पहली बात है, जब आप लोन्स लेते हो तो क्या होता है? इंस्टॉलमेंट को ढूंढते हो, कल दे पाऊंगा या आपने जीवन में क्या किया? आज आपने लाइफ का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया है, एमएनसीज ने आपको फोर्स कर दिया है कि लाइफ का स्ट्रक्चर हम ऐसा बना देंगे आपके लिए कि हमारी चंगुल से तुम निकल ही नहीं सकते। ये साफ कहा गया है कि बेसिकली गॉड प्रोवाइड्स फॉर योर नीड्स, इट डजंट प्रोवाइड फॉर योर ग्रीड। This nature is providing for needs, not for greed. आज एनवायरमेंट का सत्यानाश मार दिया अमेरिकन से, because of their greed. So I request you, आज स्टूडेंट्स हो आप, जो जिस लाइन में भी है, अपने एफर्ट पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि आप रिजल्ट तो प्रभु जी है ही नहीं। मैं कभी फिर आपके पास आऊंगा तो मैं ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में कहता हूं, जो लॉ ऑफ कर्मा समझ गया उसके जीवन से 90% टेंशन खत्म हो जाएगी। आप ये सोचते हो मैंने किया है तो मिला क्यों नहीं, एक फैक्टर और वर्क करता है, वो मेरा आज का विषय नहीं है इसलिए मैं लूंगा नहीं। नाउ इफ यू गॉट एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। यस प्लीज कीप चेकिंग। थैंक यू। Pleasure and happiness. हाँ जी। How do we differentiate? हाँ, see, pleasure and happiness. I'm not going very much deeper into spirituality to answer this question, but I'm still going a little deeper, not very deep. I'm going on the body and mind platform. Okay, pleasure is something which is actually related to the body. What happens that you basically with your eyes you see something nice, pleasure. Some music you listen, pleasure. खाने को अच्छा लगा कुछ, pleasure. Happiness जो है वो थोड़ा सा मेंटल लेवल पे आते हैं, मैं सोल लेवल पे नहीं जा रहा, अभी आपको माइंड को ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ यू थिंक योरसेल्फ टू बी माइंड नॉट द सोल।
सो व्हाट हैपेंस माइंड में, अगर माइंड की जब आती है सेटिस्फेक्शन और उससे भी नीचे आप समझिए इंटेलेक्चुअल, आप बताइए मुझे जो ग्रॉस जैसे शराब पी रहा है या इंटेलेक्चुअल जो किताब पढ़ रहे हैं, किसको ज्यादा अच्छा लग रहा है? तो किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि किताब पढ़ने वाले का क्या है, वो कभी भी उठा के पढ़ेगा, अपना इंटरनलाइज करेगा, उसको रहेगा। ये शराब पीने वाला कुछ पैक पढ़ाने के बाद ये कहाँ नजर आएगा? नाले में नजर आएगा। सो बेसिकली प्लेजर इज ऑल रिलेटेड विद दिस बॉडी, ग्रॉस बॉडी। हैप्पीनेस स्टार्ट्स फ्रॉम द इंटरनल बॉडी। इंटरनल बॉडी इज मेड ऑफ ईगो, इंटेलिजेंस एंड माइंड। सो इट स्टार्ट्स ऑफ विद द माइंड। सो प्लेजर और हैप्पीनेस में ये फर्क है, आप समझिए। प्लेजर क्या और हैप्पीनेस क्या है? एक चीज और, आप लोग जो हैप्पीनेस बाहर ढूंढते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कुछ खाना आता है जो आपको बहुत पसंद है, और आपके सामने आते, भगवान ना करे ऐसा हो, आते ही सामने आपको फोन आता है कि कोई बहुत क्लोज व्यक्ति जो है उसका एक्सीडेंट हो गया और आईसीयू में, मतलब इज वेरी क्लोज। अब आप वो खाना खाओगे, आपको हैप्पीनेस होगी, परंतु खाओगे अच्छा लग सकता है, प्लेजर आ सकता है, परंतु हैप्पीनेस क्या आएगा? टेस्ट अच्छा है, टेस्ट तो आ जाएगा, आएगा ही आएगा, परंतु हैप्पीनेस उसमें जो आनंद आता है ना, जो आप बैठ के चुपचाप, और प्लेजर को जो आपने इंटरलाइज किया, उसको हैप्पीनेस, उसको आपको फील किया, वो फीलिंग नहीं आएगी उसमें। एक बार वो टेस्ट आ सकता है टंग तक, वो तो कोई भी कितना गड़बड़ होगा, टेस्ट तो आ जाएगा, परंतु वो हैप्पीनेस नहीं है। एस्पायर हैप्पीनेस के लिए करेंगे या स्थित प्रज्ञ बनने के लिए? नहीं, तो बेसिक फैक्ट ये, मैं बोला डीपर नहीं गया, डीपर जाने में तो स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है वो तो बेसिकली बताई जा रही है कि उसका तो तरीका ही पूरा क्या है? When all these senses start working, where you are internalizing everything which you take in, from seeing to hearing to tasting, everything has to be what? स्थित प्रज्ञ कौन होता है? जो अपनी स्थिति में क्या है? स्थिर है। उस स्थिरता कैसे आएगी? उस स्थिरता उसी से जुड़ने से आएगी जो स्वयं स्थिर है। कौन है? तो उस स्थिर अच्युत एक नाम है जो कभी अपनी स्थिति से गिरते हैं, तो उसका नाम कृष्ण भगवान। Absolutely. जो अपने स्थिति से कभी हिलता नहीं है। जब आप उससे कनेक्ट होते हैं, जब आप भी क्या हो जाओगे? स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। नहीं तो स्थित प्रज्ञ हो ही नहीं सकते। विश्वामित्र जैसे गिर गए, स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाए। वो मतलब ग्रेट योगी। तो स्थित प्रज्ञ जब ही होते हो जब आप इससे कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि आपने डीपर क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं बता रहा हूं। So that is ultimate that you have to come there. So today I was just saying that what is the importance of spiritual life. Bhagavad Gita is not just second chapter. Sthit Pragya is only second chapter. Sthit Pragya is only second chapter. Details have been given when you move ahead, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th. 12th में आते तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर आपको और डिटेल्स बताना शुरू कर देते हैं। When you go to 13th, 14th, 15th, 16th, then he goes to the 14th level. There are three qualities which start operating: Sattvagun, Rajagun, Tamogun. So here now these people, they do not know. They do not know that basically सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या होते हैं? ये क्वालिटीज हैं जिन क्वालिटी के साथ आप एसोसिएट करोगे वैसी क्वालिटी आपकी बन जाएगी। ना तमोगुण क्या क्वालिटी है? जिसके अंदर कि आप गलत को सही समझोगे और सही को गलत। रजोगुण, अगर रजोगुण की क्वालिटी बढ़ेगी तो आप क्या होगे? कंफ्यूज रहोगे, क्या सही है क्या गलत है। और ज्यादातर ऐसे कंफ्यूजन में अगर आपको राइट आंसर नहीं मिलता तो आदमी ज्यादातर रॉन्ग डिसीजन लेता है। सत्वगुण में क्या पता लगता है? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। नाउ द बेसिक फैक्ट इज हाउ डज दैट क्वालिटी डेवलप। आज बायोकेमिस्ट्स ने अमेरिका के अंदर इस बात को माना है, व्हाट यू ईट has got an effect on your body and mind. Now the people, they have not been taught about it, not people know about it, that how can eating change my mentality. Yes, it has been stated by biochemists all over the world, in America, that yes, what you eat has got an effect on your body and your mind. Now what are we doing today? We are trying to change our consciousness, how we perceive things, right or wrong. How do you perceive things? Knowledge किस लिए होता है? यहाँ हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, आप लोग सब कोशिश क्या कर रहे हैं? सृष्टि बदलने की कर रहे हैं, right or wrong? बदलनी क्या चाहिए? दृष्टि। आप सब के सब सोच रहे हो सृष्टि बदल जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट? मैं जनरल मैनेजर कुर्सी में बैठ जाऊंगा, सृष्टि बदल गई, बहुत अच्छा हो जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, 2-4 लगे तो टांग खींचने को। क्या करेगा उस टाइम? क्या करेगा? टेंशन में रहेगा। सो बेसिक फैक्ट इज सृष्टि बदली, हमारी दृष्टि बदली है। जब दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, फिर तो सृष्टि अपने आप जैसी आनी होगी वैसी आएगी, आपकी दृष्टि सही रहेगी। अंडरस्टूड दिस? दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम कि नॉलेज नहीं लेते। सो दैट्स व्हाई आज
मैंने आपको बताया कि मैंने ये सारा चीज एक्सप्लेन करी है 14 आवर्स के अंदर। सो मेरा उद्देश्य यही है कि भगवत गीता का आपको छोड़ना नहीं है कुछ। योग का मतलब छोड़ना होता है, जोड़ना होता है। योग शब्द का शब्द ही मतलब होता है जोड़ना। तो ये नॉलेज भी जोड़ो ना, क्या प्रॉब्लम है? छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया मैंने क्या छोड़ा है। आई गॉट माय वाइफ, शी इज बेसिकली एन LLM फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी, शी वाज टीचिंग देयर, प्लस शी वाज प्रैक्टिसिंग इन द हाई कोर्ट, शी वाज टीचिंग एन LLB एंड LLM स्टूडेंट्स। आज मेरी उम्र 59-60 इयर्स हो गई है। आई हैव बीन बेसिकली टीचिंग फॉर द लास्ट 34 इयर्स। आई हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग। आई एम बेसिकली टीचिंग। मैं क्या कपड़े नहीं पहन रहा। आज मेरे को लोग कहते हैं ये क्या पहना है, मैं तो तूने क्या पहना है? तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पहनने से कोई फर्क पड़ता है क्या? मैंने अपने फादर को आर्मी में देखा था। ही यूज्ड टू वेयर ग्रीन्स, ओजी। तो मुझे यूनिफॉर्म पहनने में कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि आई सॉ माय फादर बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर यूनिफॉर्म। एक्चुअली आई टेल, आप लोग सब मेरे अगेंस्ट हो जाओगे, बंधुआ इससे जब तक बच्चा पढ़ रहा है ना, ही शुड बी इन यूनिफॉर्म। जब तक बच्चा पढ़ रहा है, और आपकी जानकारी के लिए जितने टॉप MNCs ऑफ जापान है, वहां के सारा स्टाफ CEO से लेकर और नीचे तक एक यूनिफॉर्म पहनता है। आप यहाँ ही आपका है, मयूर यूनिकोटस है, वो प्रैक्टिस करते हैं इसको। उनका चेयरमैन भी जो है वो भी वही कपड़े पहनते हैं, वो की जो कि उनका वही ब्लू, डार्क ब्लू उनका पैंट है और लाइट ब्लू है, यहाँ उनका मयूर यूनिकोटस लिखा हुआ है। दे आर द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ नॉन लेदर जो बनाते हैं फोम इन इंडिया, नंबर 4 इन द वर्ल्ड। ही वेयर सुबह जाते हैं तो वो वही पहन के जाते हैं। क्योंकि प्रभु जी क्या है कि ये गलत चीज है। इसमें क्या होता है कि एक जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ना प्रभु जी, ये बचपन के अंदर कभी नहीं आना चाहिए कि इसके कपड़े अच्छे हैं और मेरे कपड़े खराब। ये चीज ये क्या होती है, एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करते हैं। कई बार इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स रिजल्ट वायलेंस। When he does not get things, then he resorts to other ways. I was talking to someone, I was telling him, basically, this should not stop in the 12th standard. It should continue till the education of the whole person. उससे क्या रहेगा? यूनिफॉर्मिटी रहेगी, प्रभु जी रहेगी। एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी और स्टूडेंट लाइफ में रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर गड़बड़ करना शुरू कर देते हो, दिखावा। जबकि प्रभु जी अल्टीमेटली लाइफ दिखावा नहीं है। अल्टीमेटली लाइफ दिखावा नहीं है। आप जो अंदर हो ना वो असली में हो, दिखावा करके करोगे क्या? सो ये प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। So that's why there are certain things when you understand those, you agree to them. You may be revolting to them initially, but when you understand that what's the use of those things, then you say, yeah, बात तो सही है, बात तो सही है। I'll tell you one thing, that is our scriptures say that the present generation which is there, it is a very, very highly potential generation which can change the consciousness of the world. The present generation which is there all over the world, because I have seen, I mostly teach, I give my lectures and talks, I give them mostly amongst youngsters and students. So I have seen, and because that is the age when you can take knowledge. I also took the knowledge when I was 18 years old. I started at that particular point of time. So I did not leave anything. So that एक चीज दिमाग से निकाल देना, साधु सब जंगल चला जाएगा, कहाँ लिखा है जी? मैं भी स्वेटर पहन रहा हूँ, आप भी स्वेटर पहन रहे हैं। ठंड मुझे भी लगती है, आपको भी लगती है। नहीं योगी होना जी, ठंड नहीं होनी, कपड़े मत पहन। अरे कमाल, that is not the, मैं कोई मिस्टिक पावर दिखा रहा हूँ? शास्त्रास don't enjoy this. This is the wrong way. This is like cheating. अगर तुझे कपड़े उतार के रहने तो हिमालय जाना, हमें क्यों दिखा रहा है कि ठंडा में रह सकता हूँ? हमें impress नहीं होना। So these things you have to understand that you don't get pulled back. Any other questions, please? Yes. I have 3 questions, sir. आपने बोला था सबसे पहले happiness के लिए satisfaction चाहिए. So do we have to satisfy a small thing? Means अगर मेरे लिए कोई चीज छोटी है, क्या मुझे नॉरी satisfy होना चाहिए, फिर बड़े के लिए कम अपने? हाँ, जो आपने क्वेश्चन किया है, मेरे को थोड़ा सा can I take 5 minutes कर सकता? देखिए प्रॉब्लम क्या है, क्या हमें रिजल्ट के लिए काम नहीं करना चाहिए? क्या हम रिजल्ट के लिए काम कर सकते हैं? तो आप एक चीज मैं इस 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इसको। एक होता है प्रभु जी, यहाँ लिख रहा हूँ गोल, ठीक है? एक चीज है गोल, अब यहाँ इसके ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ फ्रूट, और ये है एफर्ट। ओके, समझ गए क्या है? एफर्ट, फ्रूट एंड गोल। नाउ दिस इज आई केप्ट इट सेपरेट।
There can be no effort without a goal. Understood? What do you enjoy? The goal or the fruit? Absolutely right. Now it is in your hand. You want to connect this fruit with the goal, or you want to connect this fruit with the effort? What is more smarter? Absolutely right. Goal may be attained or may not be attained. परंतु एफर्ट जो है आपका वो तो हर क्षण अटेन हो रहा है. मतलब every moment of your life you are satisfied and you are trying for the goal. Now if I reach here it is okay. If I don't reach here then also I am successful in life. But a person उसको basically जिसने ये हटा दिया और इससे कैट कर दिया, वो जिंदगी भर पहुंचा और यहां पहुंच के रह गया. वो फेलियर है कि सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल रह गया. परंतु हम यहां नहीं, हम यहां पहुंचे हैं, परंतु हमने इसको उसके नाम रखा है. बताइए कौन जीता? हम जीत गए, वो हार गया. सो आपको क्या करना है? रिजल्ट्स, एग्जामिनेशन के रिजल्ट गोल बनाया कि मुझे क्लियर करना है. अब आप हर की इंटेलिजेंस लेवल अलग है, ये आपको एग्री करना पड़ेगा. ये कोई अब डिलीजेंस आप अपने आप के हाथ में. डिलीजेंस का मतलब एफर्ट आपके हाथ में. अब अपने इंटेलिजेंस लेवल को देख के आप एफर्ट को क्या कर सकते हो, उसके साथ मैच कर सकते हो. उसको मैच किया और उसमें खुश हैं. आज मेरे को 3 घंटे पढ़ना था, मैंने पढ़ लिया, वेरी गुड. But that doesn't mean you go and see a movie. Actually, a good student or a good businessman does not have time for all this nonsense. या आपकी जानकारी के लिए, एक बार बिरला जी के साथ, घनश्याम दास बिरला जी के साथ, दिलीप कुमार was traveling in the plane. तो दिलीप कुमार, बिरला जी पढ़ रहे थे पेपर. दिलीप कुमार says, ऐसे, I am दिलीप कुमार, मैं दिलीप कुमार हूं. तो बिरला जी ने देखा, अच्छा, फिर देखा पहचाना नहीं उसने, मैं दिलीप कुमार हूं. तो बिरला जी ने फिर बहुत अच्छा, अब दिलीप कुमार. फिर कहा मैं दिलीप कुमार वो फेमस एक्टर हूं. ओह क्षमा करिएगा, मैंने पिछले 30 साल से पिक्चर ही नहीं देखी. मैं 30 साल से, because that is not my field of enjoyment. That is not the field of my satisfaction. In student life you think कि मुझे मजा भी करना है. I am sorry फिर बेटा, मजा ही करते रहना. I am sorry. ये लाइफ को अगर आप एनालाइज करोगे ना प्रभु जी, you will be shocked. जिन्होंने लाइफ में सक्सेस पाया है ना, टॉप पे पहुंचे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं था इन चीजों के लिए. उनको इसी में आनंद लेते थे. टाइम. You should. That means you are not fit to be a student. Please go and join ITI, not IIT. If you don't enjoy your studies, stop it. Don't waste your time. Become something where you can earn some money. You will become an MBA of MBA which has failed, जो कि बेसिकली चपरासी बनने लायक नहीं है. फिर आप चपरासी भी नहीं बन सकोगे. ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने एक बार करना पड़ा प्रभु जी. एक 5 स्टार में था, यूनियन बहुत बड़ी थी, बहुत तंग करती थी, और 4-5 लोग थे जो यूनियन तंग करते थे, और यूनियन कभी भी मैनेजर लेवल पर नहीं होती. मैंने उन 4-5 को प्रमोट करके मैनेजर बना दिया. 5 को मैनेजर बना दिया. अब वो यूनियन से तो हट गए. फिर मैंने 8 महीने बाद किक आउट कर दिया. उनको कहीं नौकरी नहीं मिली जिंदगी में, क्योंकि वो सोचते थे हम तो मैनेजर लाएंगे, तो वर्कर लाइफ नहीं थे, खत्म हो गए. इसी तरीके जीवन के अंदर भी ध्यान रखना. यू शुड एंजॉय व्हाट यू स्टडी. यू शुड नॉट हैव टाइम फॉर ऑल दिस नॉनसेंस. दिस इज नॉट द टाइम फॉर इट. और जब आप बिजनेस या नौकरी में चलाओगे वैसे टाइम नहीं होगा. फिर बुढ़ापा आ जाएगा. टाइम होने के बाद भी क्या होगा, जाने लायक नहीं होगा. तो मेरे भी बहुत टाइम बताइए मुझे. आप लोग सोचते हो कि यार इस उम्र में नहीं करेंगे, मजा तो कब करेंगे. बेटा कर ले, या तो तेरे पिताजी ने बहुत कमाया होगा तब तू कर सकता है, परंतु फिर रोएगा ही जिंदगी भर. सो प्लीज फॉर गॉड सेक इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसके साथ मत रखो. That's why I say don't set up milestones for success. Don't set up milestones for success. Don't set up milestones for happiness. कि जब वो होगा तब मैं खुश होऊंगा. Right प्रभु जी? मैं आज ही कर रहा हूं, आज ही I am. So I think that answers your question. Exactly. सर सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है मेरे को. फिर से मिल जाएगा, बहुत चीजों को मिल जाएगा ऐसे. थर्ड क्वेश्चन पूछा प्लीज सुना मुझे. हाउ डू आई रीड गीता एंड हाउ डू आई अप्लाई इट इन माय लाइफ? First, I told you, take this MP3 of 14 hours. MP3 भी है, DVD भी है. आप
दोनों ले सकते हैं, जो चाहें वो ले सकते हैं। MP3 को मोबाइल पे लोड करके आप सुन भी सकते हैं। गिव सम टाइम फॉर दिस नॉलेज ऑल्सो, दिस विल हेल्प यू। IIT के अंदर टाइम नहीं होता, प्रभु जी रियली बता रहा हूँ, लोगों को इतना ज्यादा होता है काम, परंतु वो लोग महामंत्र के 16 राउंड्स करते हैं जिसमें 2.5 घंटे लगते हैं, एंड देयर प्रोडक्टिविटी हैज इंप्रूव्ड। कहाँ तक पहुंच गई, वो खुद कहते हैं कि प्रभु जी पहले जो 8 घंटे में समझते थे आप 3 घंटे में ही समझ जाते हैं। बिकॉज व्हाट हैपेंस, वो शेडिंग हो जाती है, अब स्थित प्रज्ञ हो जाती है, जो उन्होंने प्रभु जी ने कहा, यू गेट्स फिक्स्ड। अभी क्या है, माइंड का क्या चलता है प्रभु जी, 50 हो जाएगा कंसंट्रेशन। तो मंत्र का मतलब है मंत्रा, जो मन को तार दे, जो मन को फालतू चीजों से तार दे, उसको तार दे, उसको कहते हैं मंत्र। मंत्रा, मंत्र इति त्रायते इति मंत्रा, जो मन को तार दे वो मंत्र। तो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 शब्द का मंत्र है। इसको 108 बार तो करिए, 7-8 मिनट करिए सुबह, फिर इसको बढ़ा सकते हैं। आप देखिए आप कैसे, आपको आप, मैं आप कुछ नहीं कर रहा, आप अपने आप देखेंगे इसका। सर पहले मैं भी कुछ मंथ्स को पढ़ता था, बट आफ्टर दैट गीता मेरे पास भी गीता है, मैंने गीता के कुछ पढ़े थे चैप्टर्स, हो सकता है मैं समझ नहीं पाया हूँ, हो सकता है मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, बट उसमें कुछ लिखा हुआ था कि आपको भगवान का नाम लेने की ऐसा जरूरत नहीं है, सिर्फ काम करो एंड फल की चिंता मत करो। नहीं, वो प्रभु जी, द बेसिक फैक्ट इज दिस, दैट बिकॉज विदाउट knowing God, how will you know the purpose of life? That's why question I asked you, which actually none of you can answer. Till you know don't know the purpose of life, then you'll have a problem. तो जब भी आपको इसमें समझाया है, क्योंकि गीता को ट्रांसलेशन भी बहुत लोगों ने किया है, कईयों ने सिर्फ नाम के लिए किया है कि गीता का ट्रांसलेशन करूंगा, मैं ट्रांसलेटर जाना चाहूंगा। तो अभी गीता में पढ़िए, शुरू में मैं आपको जो बता रहा हूँ सुनिए, फिर आप हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा, हम वो गीता दे देंगे आपको, फिर पढ़िएगा उसको। Any other question? I'll take it faster. Yes. Who made us and why? Who? Made us. Who made us and why? Purpose of life. That's what basically you are asking for. So that I can't answer you in 1 minute. तो MP3 डाल लीजिए, ठीक है, और उसको सुन लीजिए, उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। 14 hours. Only last question because अरे All कौन सी? standards हो रहे हैं. Only last question. This. अगर मैं देखा है, उससे आपको फायदा क्या? Let us be businessmen now, because we are talking management. आपके पास 10 करोड़ 1000 करोड़ रुपया है, तो तेरे को क्या फायदा होगा उससे? राइट? See, that's why please हटना सेल्फिश होना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ में भी क्या कहते हैं भागवत, स्वार्थ गतिम ही विष्णु, स्वार्थी बनो। So I have seen God, I tell you, but how does it benefit you? हाँ, process. I'll tell the process. कोई कह रहा 14 hours सुनो पहले, थ्योरी तो क्लियर करो ना मुझे। 14 hours I can't explain you in 1 hour. You can subscribe for daily spiritual clips on WhatsApp and email at www.givegita.com/subscribe. You can also watch our lectures on Disha TV channel or on our website www.givegita.com/tv every Sunday morning at 8:10 a.m. Get world's first audio-video correspondence course on Bhagavad Gita, a very logical, scientific and easy to understand explanation on Bhagavad Gita. You can get the DVD set of our correspondence course at our eBay portal at www.bit.ly/giveebay, or you can mail us at contact@givegita.com.